afternoon, good evening, ladies and gentlemen. My name is Janvi Pawar, and today I'm here in Punjab at Daily Post News. And to be very honest, I'm very happy. I've been to Punjab for quite a few many times, but this time it is different, it is special. I'm meeting a lot of people, interacting with a lot of people, and now I will be interacting with you, so I'm pretty excited about that. And here we have a very lovely anchor who I just met, and she is so lovely. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? 13 to 14. Yo quisiera solo fiula vasa, vasa marera hasa swaine sa akil morore, neve nadrosa roda kechuwe. ਸਰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. Pull up in the monster automobile gangster with a bad bit that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in the tanka, kala a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर थी, नई क्लास थी, वो पहली बार मैं गई थी, क्लास के 80% बच्चे तो उठकर ही चले गए. Red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. And then we talk about American. She sells seashells by the seashore. 13 साल की एज में 12th हो गई, आगे 16 साल की एज में ग्रेजुएशन हो गई, 18 साल की एज में MA इंग्लिश हो गई, 20 साल की एज में इसकी डबल MA हो गई, फिर इसने गेट की तैयारी की. इसके अलावा लगभग 200 के आसपास इसने बुक एक्स्ट्रा पढ़ ली. मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, थारी शान देखना चाहूं सू, गर्भ बाहर लिकड़ का हिंदुस्तान देखना चाहूं सू. और संडे को ट्रेन पकड़े सीधे रेड फोर्ट पहुंचते हैं. रेड फोर्ट पे बहुत सारे ब्रिटिशर होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो मैं जानवी को बोलता हूँ पकड़ो उसको. ये भाग के जाती है, एक्सक्यूज मी अंकल, मे आई टॉक विद यू. बड़ी पोलाइटली बात करते थे. वहाँ भी एक प्रॉब्लम होगी. I select my students. अगर कोई student वैसे भी आ जाता है तो I already tell them that if you are enrolling in my classes, so make sure you are serious. Otherwise, really want to become fluent in British, then make sure you're following. Again, I would definitely say like this is still one of the best pronunciations that I've ever come so far. And नन्हे कदम पर सपनों का आसमान बड़ा, छोटी सी उम्र पर हौसला खड़ा, आंखों में चमक जैसे सूरज की किरण, हर सोच में छुपा कुछ नया सृजन, कागज पर लकीरें पर कहानी गहरी, पीछे जो स्ट्रगल आपके पापा का रहा. कम उम्र कोई सीमा नहीं होती, प्रतिभा कभी उम्र से नहीं होती, जो दिल से जिए वही आगे बढ़े, छोटे सितारे ही एक दिन सूरज बन जाए. good morning, good afternoon, good evening, ladies and gentlemen. My name is Janvi Pawar, and today I'm here in Punjab at Daily Post News. And to be very honest, I'm very happy. I've been to Punjab for quite a few many times, but this time it is different, it is special. I'm meeting a lot of people, interacting with a lot of people, and now I will be interacting with you, so I'm pretty excited about that. And here we have a very lovely anchor who I just met, and she is so lovely. Hello, and thank you so much for having me. Thank you so much. I am good. How are you? I'm good, thank you. जानवी, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਹੋ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਹਾਂ, मैं भी कंफ्यूज हो गई. नहीं, मेरे को अभी आपसे सीखना है काफ़ी कुछ. वेलकम जानवी, डेली पोस्ट न्यूज़ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸਟ ਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਰਹੀ. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਬਿਕਮ ਐਂਕਰ. Thank you. Hopefully, one day. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਹੋਵੋਗੇ. अरे नहीं. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ. आप मुझे करेक्ट कर देना बीच में. ਨਹੀਂ, ਆਓ जानवी ਤੁਸੀਂ. बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ. पंजाबी बोल रहे हो? बोलती नहीं हूँ पर समझ में पूरी आती है. अच्छा, मैं पंजाबी बोल सकती हूँ. परफेक्ट. तो ਤੁਸੀਂ कितनी लैंग्वेजेस बोल रहे हो? मैं अलग अलग इंग्लिश के एक्सेंट्स बोलती हूँ. ब्रिटिश, अमेरिकन, RP, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉल्क कॉकनी, फिर फ्रेंच लैंग्वेज, जापानीज लैंग्वेज, स्पेनिश, काइंड ऑफ देयर, और फिर हिंदी. और हरियाणा से मैं हूँ तो हरियाणवी. लगभग 13 to 14. 13 to 14 लैंग्वेजेस. अन्या किमें याद रहंदियां? इत्थे तो 3 लैंग्वेज नहीं किसी को याद रहंदियां. मुझे याद रह जाती है. वो प्रैक्टिस इस तरीके से करी है मैंने. पहले एक लैंग्वेज, फिर दूसरी लैंग्वेज पे स्विच करना, फिर तीसरी पे स्विच करना, फिर वापस फर्स्ट पे आना. तो इस तरीके से प्रैक्टिस करी है. मेरे फादर ने इस तरीके से प्रैक्टिस करवाई है कि मैं इन लैंग्वेजेस में कभी कंफ्यूज ना हूँ. अच्छा जानवी, ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ. ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ.
हाँ जी, जब मैं 7-8 साल की थी तब से मैंने शुरुआत कर दी थी, तो फिर उससे भी पहले शुरुआत कर दी थी। 3-4 साल की थी मैं, अभी भी मेरे घर पे पिक्चर्स रखी हुई हैं। तो मैं स्टेज पर बोलना शुरू करा था मैंने। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बड़ा शौक था, तो स्कूल में कोई इवेंट होता था तो वहाँ की एंकरिंग करना, कोई स्पीच देना, तो तब से लेकर आज तक मैं स्टेजेस पे ही बोलती हुई आ रही हूँ। ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ? ऑनलाइन। ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਸਿੱਖੀਆਂ? ਓ ਨਾਈਸ। ਮੋਬਾਈਲ? मोबाइल से। ਮਤਲਬ ਮੋਬਾਈਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰੀल्स ਦੇਖ-ਦੇਖ ਕੇ काफी टाइम पास हो रहा है उस लोगों टाइम का। पे रील्स इतनी नहीं होती थी और हमारे घर पे एक ही फ़ोन होता था टच वाला, तो उसी से देख के वीडियोस, और नेट भी ज़्यादा नहीं आता था। अब तो ऐसे अनलिमिटेड आने लगा, पहले बहुत कम आता था। जितना अब एक दिन में आता है उस टाइम पूरा 1 महीने में आता था। तो एक ही दिन में हम सारी वीडियोस डाउनलोड करके फिर उन्हीं को बार बार प्रैक्टिस करना। ਉਹ ਨਾਈਸ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏजेस ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਨਲਾइन ਸਿੱਖੀਆਂ? सबकी सब ऑनलाइन सीखी हैं। मुझे लगता है कि आपको मैसेज देना चाहिए हमारे व्यूअर्स को कि आप मोबाइल का इस्तेमाल करें, अच्छे काम के लिए अच्छे इस्तेमाल काम करें। के लिए यूज़ करें। आज बल्कि ऐसा हुआ भी, आज किसी एक स्टूडेंट का फ़ोन आया और वो स्टूडेंट कह रहे थे कि जानवी आपने एक वीडियो में बोला हुआ है कि हमें फ़ोन देखना चाहिए। मैं फ़ोन देखना चाहिए पर पॉजिटिवली देखना चाहिए। जो भी आप, क्योंकि फ़ोन हर एक चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। कोई एक ऐसा इंसान भी हो जो कि आपको नेगेटिव लग रहा हो, शायद उसमें कोई ऐसी पॉजिटिव चीज़ भी हो जो कि आपको कुछ सीखने को मिल सकती है। तो सेम चीज़ फ़ोन पे, और फ़ोन हर किसी के पास एक ऐसा एक्सपोजर आ चुका है अब पूरे वर्ल्ड का कि आपको जो सीखना है आप उसे सीख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। तो फिर आप उसको पॉजिटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, नेगेटिवली भी यूज़ कर सकते हैं, चॉइस आपकी है ना। और मोबाइल सही किया ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਜਾਨਵੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 22 ਇਅਰਸ 올ਡ, ਸਰ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ IPS IAS ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। इंग्लिश सीखने के लिए मैं नहीं कहूँगी, पर उन्हें एड्रेस ज़रूर मैं करती हूँ। अलग अलग जगह पर जब प्लेटफॉर्म्स मुझे मिलते हैं तो उन्हें एड्रेस करने के लिए मैं जाती हूँ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? बस यही कि आपने इतना सब कुछ कैसे करा आगे एज एन एजुकेशन ना, क्योंकि मैं एजुकेशन के फील्ड में हूँ, तो फिर और आप कंट्री में क्या देखना चाहते हैं, क्या कुछ हो सकता है, तो कुछ ऐसे ऐसे सवाल। और फिर इसी के साथ कॉन्फिडेंस का भी एक बड़ा सवाल होता है कि कॉन्फिडेंस कैसे लेकर आएँ अपने अंदर, लोगों के साथ वो वाली बातचीत कैसे करें। पर मुझे उनसे भी सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है, क्योंकि कंसिडरिंग दे आर द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री, तो उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है और फिर उनके साथ बात करने में बड़ा मज़ा आता है। ਅੱਛਾ ਜਾਨਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਗੁਏजेस ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ है। बिल्कुल ऐसा होता है, क्योंकि लैंग्वेज एक जो ऐसी चीज़ होती है जो कि बनी ही आपके आइडियाज़ के लिए होती है, कि आपके पास एक आइडिया है, आपको उस आइडिया को किसी और के पास भेजना है, तो उस आइडिया को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, बेसिकली उस आइडिया को आप कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन में जितनी लैंग्वेजेस आएंगी उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि उतनी ज़्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर पाते हैं। ਪਰ ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਓ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। हर लैंग्वेज में एक गाना था, वो उस टाइम पे बड़ा फेमस हुआ था, तो वो फ्रेंच और स्पेनिश का बड़ा प्यारा सा मिक्स था, तो बहुत ही स्लो गाना था वो। सो इट वाज समथिंग लाइक चुक्के सर sort of feel lavasa was somewhere I was swaying aquel morire never nadro saro do que chue never nadro saro do que chue usilada aquel morire. So just a little bit of that. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਟ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਲੈਂਗੁਏजेस ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ बेटर हुई? डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन में म्यूज़िक ने, गानों ने मेरा बहुत साथ दिया है, क्योंकि उस टाइम पर जो है इतने सारे गाने तो मैं सुन नहीं पाती थी, पर कुछ गाने हम डाउनलोड कर देते थे, जस्टिन बीबर, शकीरा। सो इनके गाने जो है उनके लिरिक्स पहले देखना, फिर उनको प्रोनाउंस करना, उन्हीं के तरीके से प्रोनाउंस करना, एक वर्ड को कितना ज़्यादा स्ट्रेच करना है एक ट्यून में लेकर आने के लिए, एक वर्ड को कितना कम बोलना है एक ट्यून में लेकर आने के लिए। तो रिदम हो गई, इंटोनेशन हो गई, प्रोनाउंसिएशन में बड़ी मदद करी गानों ने। कौन सी लैंग्वेज सीखने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ी या चैलेंजिंग लगा? आई थिंक थोड़ा बहुत चैलेंज, मुझे लैंग्वेजेस सीखने में बड़ा मज़ा आता है, तो इतना चैलेंज मुझे लगता नहीं है। पर जापानीज़ में थोड़ा सा था, क्योंकि उसकी जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट भी उसकी अलग है, वो इंग्लिश में नहीं लिखी जाती, उनकी खुद की स्क्रिप्ट है। और उनकी स्क्रिप्ट भी 3 है, एक हिरागाना, एक काताकाना, एक कांजी। तो उन तीनों स्क्रिप्ट्स की प्रैक्टिस करना वो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बाकी उसको बोलने में बड़ा मज़ा आता है। अच्छा कुछ बोल के सुना दो जापानीज में। कोनिचिवा मिनासान वाताशी वा जानवी देsu, योरोशिको ओनेगाईशिमासु ने, आरिगातो गोजाइमासु। सो क्यूट, क्या की? मैंने कहा हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड माय नेम इज जानवी एंड इट इज अ प्लेजर टू मीट यू। ओह नाइस, बहुत प्यार ना एक तो ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, और
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਵੌਇਸ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਬਟ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ। थैंक यू। आई थिंक बातों को रखना, अपने आइडियाज़ को रखना, अपने थॉट्स को प्रेजेंट करना, वो भी एक तरीके की स्किल होती है और वो एंकर्स बहुत अच्छे से रख पाते हैं क्योंकि उन्हें लोगों के आगे अपनी चीज़ें आर्टिकुलेट करनी होती हैं। तो ये चीज़ भी मैंने बड़ी न्यूज़ चैनल्स देखकर ही सीखी है। तो मैं जब 9-10 साल की थी, मैं उस टाइम पे अलग अलग न्यूज़ एंकर्स को बड़ा मिमिक करती थी। तो उस टाइम पर बड़े फेमस न्यूज़ चैनल्स थे, फेमस न्यूज़ एंकर्स थे, तो उन्हें मिमिक करती थी और वहाँ से फिर वो बोलने का तरीका, किस तरीके से आपको बोलना है, अपनी बात किस तरीके से रखनी है, किसी से पूछना कैसे, अपनी किसी की बात को काट कर कैसे पूछना है, तो वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ से सीखी। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਂਕਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ। हाँ जी, मैं उस टाइम पर बड़ी अच्छी मिमिक्री करती थी। उस टाइम पे मैं डेली बेसिस पे न्यूज़ सुनती थी। तो एक हमारा रूटीन होता था, तो मैं और मेरे पापा मेरे साथ बैठकर देखते थे न्यूज़ को। तो एक दिन हम टाइम्स नाउ देखते थे, फिर अल जज़ीरा, फिर BBC वर्ल्ड न्यूज़, फिर CNN न्यूज़। तो अलग अलग एंकर्स को हम देखते थे, अलग अलग न्यूज़, और फिर उनको मिमिक। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਿਆ बिल्कुल, ਕਰੋ। फॉर श्योर, डेफिनेटली। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਪਾਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਜਾਨਵੀ ਜੋ ਮਹਿਜ਼ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ UK ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਪਾਨ ਗਏ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ बट कभी गए हो? नहीं, मैं गई कभी नहीं हूँ। मैंने बस ऑनलाइन ही वहाँ के लोगों के साथ इंटरेक्ट किया और बोला है और सीखा है। बाकी उसके अलावा मैं गई कभी नहीं हूँ। अच्छा, मतलब पहले ही तैयारी कर ली, जाना पे तो उत्थे जाके प्रॉब्लम नहीं कहीं पे आएगी दिक्कत नहीं आएगी। गल करन दे विच। नहीं, कितने जाना चाहते हैं सब तो पहला? सबसे पहले मैं सोच रही हूँ कि एक UK का ट्रिप प्लान करूँ, वहाँ पे कुछ प्रोफेसर से मिलूँ। तो मेरा पहला एक्सेंट भी ब्रिटिश ही था, सो जस्ट ड्यू टू दैट मैं सोच रही हूँ कि पहले वहाँ पे। अच्छा, PhD कर रहे हो जानवी हुण तुसी, और तुसी लेकिन ट्रेनिंग भी दे रहे हो बहुत सारे लोगों को, मतलब क्लासेस भी लेने हो? मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो अभी तो मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन है, हमेशा से मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन ही रही है क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी साइड बाय साइड है। तो अभी मेरी PhD चल रही है, तो PhD का कोर्स वर्क चल रहा है। एज़ फॉर द ट्रेनिंग, हफ्ते में 1 दिन दे दी, हफ्ते में 2 दिन दे दी, बाकी प्रायोरिटी पे एजुकेशन रहती है। अच्छा, बट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ जो इंग्लिश सीखते ने ज़्यादातर पंजाब ਦੇ लोग ने, हरियाणा ਦੇ, या फिर ऑल ओवर इंडिया लोग कांटेक्ट करते हैं? इट्स एक्चुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो जैसे ये भी कंट्रीज़ होती हैं, जैसे मालदीव्स हो गया, मलेशिया हो गया, कज़ाकिस्तान, UAE हो गया, तो वहाँ के भी काफ़ी सारे लोग होते हैं। स्विट्ज़रलैंड, यूरोप में भी ऐसे काफ़ी सारे यहाँ के लोग जो गए हुए हैं, जिन्हें वहाँ पे वो अपनी बातों को ढंग से रख नहीं पाते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, तो उनको भी। और यहाँ पे जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सारे लोग मेरे पास बैंगलोर से बड़े आते हैं, साउथ साइड के बड़े लोग होते हैं, नॉर्थ ईस्ट के भी होते हैं। सो आई विल से ऑल ओवर द वर्ल्ड है। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में ज़्यादातर मेरे पास साउथ इंडिया से काफ़ी सारे मेजॉरिटी में लोग आते हैं। अच्छा, और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿਖਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਆਣਗੇ 2-3 ਸਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਕਸੈਂਟ मारन की कोशिश करते हैं पर आ नहीं पाता। वो उन लोगों को सिखाना इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि सबसे पहले तो मैं हमेशा लेती ही बड़े सीरियस स्टूडेंट्स हों जो सीरियस होते हैं अपने अच्छा, अपनी you पढ़ाई select को लेकर। आई सेलेक्ट माई स्टूडेंट्स। अगर कोई स्टूडेंट वैसे भी आ जाता है तो आई ऑलरेडी टेल देम दैट इफ यू आर enrolling in my classes, so make sure you are serious, otherwise I wouldn't like to have you in my class in that case। तो ये चीज़ पहले ही होती है। तो फिर उनको प्रैक्टिस करवाना, क्योंकि एक्सेंट एक ऐसी चीज़ है, प्रोनाउंसिएशन, कि आप जितना उसको बोलोगे वो उतना ही आप उसमें मास्टरी लेते जाओगे। पर अगर आपने एक रूल सीख लिया, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि बच्चों को सारी तरीके के रूल्स पता होते हैं, और ये चीज़ इंग्लिश के साथ भी होते हैं, दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी होती है कि हम लोग उस पूरी लैंग्वेज को समझ पाते हैं पर बोल नहीं सकते हैं, तो वो दैट्स जस्ट लैक ऑफ प्रैक्टिस। तो आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो उस लैंग्वेज में और उस एक्सेंट की, वो उतनी आपको आती जाती है। तो मैं उस प्रैक्टिस पे बहुत फोकस रखती हूँ। मतलब इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। किन्ने स्टूडेंट्स का बैच होता है जो तुसी ट्रेनिंग देने हो, क्लासेस देने हो? ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं रहता है, पर 60 स्टूडेंट्स, कभी 70 स्टूडेंट्स, तो ऐसे होता है। मैं अलग अलग जो है अपने इवेंट्स भी रखती हूँ, कभी कभार वेबिनार्स भी रख लेती हूँ, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। फिर उनमें से आई सी कि हाँ ये स्टूडेंट ज्वाइन करना चाह रहा है इस स्टूडेंट को, सो दे ऑलरेडी टेल मी आई एम वर्किंग इन कॉर्पोरेट, मैं अभी ये हूँ, सो आई लुक एट दैट एंड आई टेक देम। अच्छा, पानीपत ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि हाँ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ टीचर है ਤੇ इंग्लिश ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ? मैं पानीपत के एक बहुत छोटा सा टाउन है पानीपत में, समालखा, मैं वहाँ पर रहती हूँ, और वहाँ के लोग इतना नहीं सीखते हैं मेरे से। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर भी, पर मुझे अभी इतना टाइम नहीं लग पाता कि मैं लोगों को ऑफलाइन कहीं पर बिठा सकूँ और फिर उन्हें पढ़ा सकूँ। तो ऑनलाइन मुझे जितना टाइम मिलता है मैं उतना सिखाती हूँ।
ਬਚਪਨ 'ਚ ਐਵੇਂ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਪੜੋਸੀ हैं वो आके कहते होन कि हाँ बेटा आज इंग्लिश सुनने का मन कर रहा है कुछ सुनाओ। हाँ, बचपन में बड़ी हुई है चीज़ें, काफ़ी सारे लोग आते थे, ओए ओए इसको इंग्लिश आती है, बोल के दिखा ना, बोल के दिखा। तो ये बड़ी चीज़ होती थी। अब इतना नहीं होता क्योंकि अब लोगों को पता लग गया है कि हाँ इसे आती है। ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਵੀ ਉਹ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ थोड़ी और करके दिखाओ कि बस वो क्योंकि लोगों से बातचीत इतनी हो जाती है, अब जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ जाते हैं, मैम तो फिर प्रैक्टिस कैसे करें, हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, अब इतना टाइम कैसे निकालें। मैं अगर आपको कुछ काम करना है तो टाइम निकालना पड़ेगा। तो हाँ, और बाकी रही बात लोगों की मिमिक्री की, हाँ ये जानवी अंग्रेजी आवत ना एक बारी बोल कर दिखा दे, तो ये चीज़ बड़ी रहती थी, अब नहीं है उतनी। हरियाणवी बहुत सोहनी बोल रहे हो तुसी। हरियाणवी में क्योंकि हम घर पे हरियाणवी में ही बात करते हैं। ओके ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿयाणवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? हरियाणवी में थोड़ा बहुत गा लेती हूँ, तो थोड़ा थोड़ा। अभी आप मेरे को ये बोलेंगे कि हरियाणवी में गाना सुनाओ, हाँ, आप समझ मेरे गए। एकदम एट द टॉप ऑफ माय माइंड कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, पर जैसे ही बीच में ध्यान आएगा मैं डेफिनेटली कोई ना कोई गाना सुनाऊंगी। ठीक है ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? मैं इंग्लिश में ही सुना देती हूँ। सो एक रैप है, pull up in the monster automobile gangster with a bad bit that came from Sri Lanka. Yeah, I'm in the tanka, kala a Willy Wonka. You could be the king, but watch the queen conquer. First things first, I'ma eat your brains. Then I'ma start rocking all teeth and fangs, cause that's what a monster do. Hair just from Milan, that's the monster shoot. That's it. ਸੋ ਗੁੱਡ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਕਲਾਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਯੋਰ ਫਾਦਰ? Credit goes to my father, yes. ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰਾ ਪਾਪਾ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ मैं खुद नहीं बोलता। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा मैम। अच्छा, आपने तो बहुत अच्छे से जानवी को जो है इतनी सारी लैंग्वेज सिखा दी, पंजाबी सिखाई नहीं है, हम आपके पड़ोसी हैं। नहीं बिल्कुल, मैं आगे पंजाबी पे है टारगेट, लेकिन थोड़ा सा बिजी शेड्यूल ज़्यादा हो गया क्योंकि स्टडी भी साथ के साथ चल रही है, क्योंकि और हमने है ना लैंग्वेज के साथ साथ स्टडी को भी फोकस करके चले हैं, तो जिस तरह से टाइम मिल पाता है वो हो पाता है, तो उस तरीके से टाइम नहीं मिला, लेकिन जब टाइम होगा तो इसको भी देखेंगे। अच्छा पवार साहब, क्यों आपके दिमाग में आया है कि जानवी को इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए? आप खुद SST के टीचर हैं, ये नहीं सोचा कि हाँ जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें इसको मतलब अच्छा स्टूडेंट बनाना है या उसको उसी में आगे लेके जाना है? इंग्लिश क्यों? नहीं, उसमें भी मैंने सोचा, इंग्लिश की बात नहीं, हर फील्ड में मैंने सोचा। सबसे पहले इंग्लिश को तो इसलिए सोचा क्योंकि जब हम पढ़ते थे, आपने नोट किया होगा, जब हम पढ़ते थे सारे हिंदी मीडियम स्कूल होते थे मोस्टली। जब हिंदी मीडियम स्कूल होते थे तो हमें जितना काम कराया गया है, 40 मिनट का जो पीरियड होता था, तो हम घर चले जाते थे 40 मिनट के पीरियड के बाद, तो उस चीज़ को हम आगे पढ़ लेते थे और आगे पढ़ के हम उस चीज़ को क्लियर कर लेते थे। तो जब इंग्लिश की बात आती है, आप देखते हैं जो बच्चा CBSE में पढ़ता है, क्योंकि उसकी मदर टंग तो हिंदी है, लेकिन जब वो स्कूल में जाएगा तो टीचर ने तो इंग्लिश में पढ़ाना है, SST है, साइंस है, सब इंग्लिश में पढ़ते हैं, तो बच्चे को टीचर ने जितना पढ़ाया उतना ही समझ पाता था, बाकी क्या करेगा वो। इस वजह से उसे ट्यूशन जाना पड़ा। इसी वजह से तो जाना पड़ा। अगर उसकी मातृभाषा में होता तो उसे ट्यूशन जाने की जरूरत ही नहीं होती। हिंदी के कौन ट्यूशन लगाता है? तो इसीलिए मुझे लगा कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह कि हर बच्चा जीनियस होता है। जब मेरी गुड़िया हुई भी नहीं थी, उससे पहले मैं 98 से पढ़ा रहा हूँ, उससे पहले मैंने एक ट्रेनिंग ली थी कि बच्चों के साथ कैसे काम करना चाहिए, पेरेंटिंग का रोल क्या होना चाहिए। और मैंने जो देखा है, NLP ट्रेनिंग होती है, एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। जब बच्चा पैदा होता है तो हर बच्चा परमात्मा की तरफ से बिल्कुल न्यूट्रल पैदा होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती किसी भी तरीके की, वो बिल्कुल प्लेन होता है। आप उसको किस तरीके से क्या बनाना चाहते हो वो पेरेंट्स के हाथ में होता है। सिर्फ पेरेंट्स ड्रीम तो लेते हैं कि ये बने, लेकिन उसके साथ काम कोई करना नहीं चाहता। अगर हमें एक मकान भी बनाना हो, हमने 100 गज का प्लॉट लिया, अगर मकान बनाना है तो हम पहले प्लान करेंगे, यहाँ पे हमारी किचन होगी, यहाँ पे हमारा रूम होगा, यहाँ पे हमारी ये चीज़ें होगी। जब आप इस तरह से प्लान करते हैं तभी तो आप वो मकान बना पाते हैं उस तरीके से। तो अब बच्चों के लिए आप कोई प्लानिंग नहीं करते, ड्रीम देखते हो लेकिन प्लानिंग नहीं करते कि ड्रीम तो हमने देख लिया कि हमारा बच्चा IAS बने, या हमारा बच्चा सिंगर बने, या हमारा बच्चा BTech करे, इंजीनियर बने, लेकिन उसके लिए प्लानिंग क्या रहेगी वो हम सोचते ही नहीं। तो वो प्लानिंग मैंने शुरू से ही कर ली थी। अच्छा, नाइस। ये अच्छी पेरेंटिंग का असर है। तो वो उसके साथ में चलता गया। वो अच्छी बात ये है कि हमने कभी ये नहीं देखा गीता की तरह, जैसे गीता में कहा कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। मैं काम करता चला गया, ये रिस्पॉन्स देती चली गई। तो वो चीज़ें दोनों की बॉन्डिंग इस तरह से बन गई। जब इंग्लिश की बात थी, जब भाषा की बात आती है तो आपने देखा होगा जब हम हिंदी भाषा सीखते हैं तो हमें किसी ने सिखाई थोड़ा है, अपने आप से सीखी। जब बच्चा 6 साल का बच्चा है या 5 साल का बच्चा स्कूल में जाता है तो बोलता है, अगर वो पंजाब से तो पंजाबी बोलेगा, कहीं से भी वो उस लैंग्वेज में बात करता है, अपनी लोकल डायलेक्ट में बात करता है। तो जब इंग्लिश की बात आती है तो क्यों? क्योंकि वो हमारी भाषा नहीं है, इसलिए हम दिक्कत में रहते हैं। तो मैंने बचपन से इसके साथ वो काम करना शुरू कर दिया था, छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश में बताना शुरू कर दिया था। बाद में फिर असेंबल करना है। घर में एक ऐसा रूल हो गया था, जब जानवी
और लोगों के साथ बात करती थी तो हिंदी में करती थी, मुझे पता था हिंदी तो ये लोग सिखाई देंगे खुद ही, मुझे तो कुछ और सिखाना है। तो मेरे पास आती थी वो एकदम कन्वर्ट कर देती है अपनी उन चीज़ों को, अच्छा तो ऑटोमेटिकली ऐसे कन्वर्ट हो जाती थी। उसका फ़ायदा क्या हुआ, उसका ये फ़ायदा हुआ कि इसकी क्लासेज भी जल्दी जल्दी होती चली गई। 13 साल की एज में 12th कर ली इसने, ओ नाइस। 13 साल की एज में 12th हो गई, आगे 16 साल की एज में ग्रेजुएशन हो गई, 18 साल की एज में MA इंग्लिश हो गई, अच्छा तभी ये कह रहे हैं कि मैं PhD कर रही हूँ, मैं भी सोच रही थी, मैंने कहा अभी 20 साल की एज में इसकी डबल MA हो गई। फिर इसने गेट की तैयारी की, इसने क्या नाम नेट JRF की तैयारी की, उसमें भी वो भी तैयारी की। इसके साथ साथ इसकी जैपनीज़ थी, फ्रेंच थी, स्पेनिश थी और लैंग्वेज थी। इसके अलावा लगभग 200 के आसपास इसने बुक एक्स्ट्रा पढ़ ली, जो एक अलग नॉलेज के लिए होती है, वो बुक अलग पढ़ ली। तो कितना प्रेशर था, लेकिन प्रेशर हमने कभी माना ही नहीं। इसकी रीडिंग पे भी काम किया, ऐसे ऐसे काम नहीं किया। अब जैसे ये 500 पेज की बुक है, बच्चे कितने दिन में पढ़ पाएंगे, कितने दिन लगा देंगे पढ़ने में? ये मुश्किल, लगता है, ये 7 से 8 घंटे में 500 पेज की बुक निकाल देती है। अच्छा इतनी स्पीड है, मतलब स्पीड पे भी काम किया, राइटिंग पे भी काम किया, हर पॉइंट पे काम किया। अगर आपको ज़्यादा नॉलेज लेना है तो स्पीड में पढ़ना पड़ेगा ना, हाँ जी बिल्कुल। तो वो स्पीड पे भी काम किया गया। कितना पढ़ पाती है, नोट करता था मैं टाइमर लगा के कि ये 1 मिनट में कितने वर्ड बोलती है। आज इसने 70 वर्ड पढ़े हैं 1 मिनट में, लेकिन वो 70 वर्ड पढ़ना नहीं होता, उसको समझना भी होता है। अगर पढ़ तो लिया लेकिन वो समझ में कुछ नहीं आया तो उस पढ़ने का फायदा क्या हुआ? पवार साहब पर आप ऐसे स्ट्रिक्ट फादर नहीं लगते हो। नहीं, हमने एक प्यार से बॉन्डिंग से काम किया, खेलते थे कूदते थे। और एक लेवल ऐसा आया मैम, जब हम इंग्लिश, क्योंकि उस लेवल पे इंग्लिश मेरी भी नहीं थी, अब ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती थी तो पेरेंट्स तो ये चाहती है ना कि और अच्छा मिले और अच्छा टीचर मुझे मिले। तो मैं बहुत घूमता था, कहीं कोई टीचर नहीं मिला मैम, और कोई मिला भी मुझे टीचर तो मैं उसके पास लेके जाता कि जानवी के साथ थोड़ी बात करो ना। वो कितनी बात करते, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, अरे नहीं इससे आगे बात करो। वो भी नहीं कर पाते थे, और कुछ इसलिए नहीं कर पाते, यार छोटी सी बच्ची है इतनी सी, इसके साथ हम बात करेंगे, वो ईगो भी हर्ट होती थी। इसका फिर मैंने रास्ता निकाला, मैं दिल्ली से क्या नाम अपने समालखा से ट्रेन पकड़ता संडे को, और संडे को ट्रेन पकड़ के सीधे रेड फोर्ट पहुंचते हैं हम। रेड फोर्ट पे बहुत सारे ब्रिटिशर होते हैं, बाहर के लोग आते हैं, तो मैं जानवी को बोलता, हम फ्रैंक थे ही, मैं जानवी जाओ वो आ रहा है पकड़ो उसको, ये भागे जाती है, एक्सक्यूज मी अंकल मे आई टॉक विद यू। लेकिन अंग्रेजों की खास बात ये थी, वो बहुत पोलाइटली बात करते थे अकॉर्डिंग टू इंडियन, वो बड़ी पोलाइटली बात करते थे। वहाँ भी एक प्रॉब्लम होगी मैम, क्या प्रॉब्लम क्या होगी वहाँ पे, ये जब बात करती थी कितनी देर बात कर पाती थी, मुश्किल से 30 सेकंड 25 सेकंड, मुश्किल से 1 मिनट। लेकिन मुझे तो कन्वर्सेशन ज़्यादा चाहिए थी ना, मैं पीछे खड़े होकर सुन रहा होता था, बेटी इंग्लिश बोलती थी, मुझे खुशी होती थी, और इतना लंबा बोल गई है। लेकिन उस चीज़ को और बढ़ाना था, इसके लिए फिर मैंने GK पे काम किया मैम। ओके फिर मैंने इसको क्या याद कराया, मैंने कॉपी बनाई और कॉपी पे मैंने सारी चीज़ें लिखी, जैसे टॉप 10 माउंटेन इन द वर्ल्ड, टॉप 10 पॉपुलेशन सिटी इन द वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड याद कराया मैम। अमेरिका में कितनी स्टेट हैं, UK में कितनी है, पूरा मैप तैयार किया, पूरा वो चीज़ें कराई। उसका फ़ायदा क्या हुआ, वो याद तो हो गई इसकी, वो चीज़ भी हो गई, लेकिन ये मैंने कराई थी इंग्लिश के लिए। अच्छा। उसका, लेकिन वो चीज़ें भी याद होगी, GK भी बहुत हो गया, SS बहुत हो गई इसकी। फिर उसका फ़ायदा ये हुआ कि जब हम दोबारा ब्रिटिशर से मिले तो उसने कहा कि आप कहाँ से हैं, जानवी ने पूछा वेयर आर यू बिलोंग, तो उन्होंने कहा कैलिफोर्निया से। ये बोलते अच्छा कैलिफोर्निया, ये तो उस साइड में पड़ता है ना, उसके पास में तो ये वाली इस स्टेट में पड़ता है, उसके पास में तो ये सिटी है, वहाँ पे तो ये चीज़ फेमस है, ये चीज़ फेमस है। उससे एक लंबी बात बन गई, कन्वर्सेशन लंबी हो गई, और उनके साथ टच भी कर पाई। तो GK मैंने इसलिए कराई थी, तो इससे एक लंबा कन्वर्सेशन हो गया। लंबा कन्वर्सेशन का मतलब हुआ कि इंग्लिश ज़्यादा बोल पाई। अच्छा बट मैं ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹਾਂ, मतलब ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। मतलब पर कह सकते हैं कि पापा की बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, और बहुत इंटरेस्टिंग है जो तुसी कहा कि मैं संडे लेके चला संडे को लेके जाता जाते थे मैम, और हम जैसे घूमते थे, हम बात करते रहते थे। हम डेली रात को मैं स्टोरी सुनाता था इसको। स्टोरी सुनाने का मतलब क्या होता था, मेरे साथ ही सोती थी तो हम बात ही उस तरीके से करते थे। छोटे बच्चों के साथ, अब पहले दादा दादी होते थे, सभी स्टोरी सुनाते थे। अब एकल फैमिली है, अपने बच्चे से कौन बात करता है, फ़ोन दे के एक तरफ हो जाते हैं। लेकिन मैं स्टोरी सुनाता था। कौन सी स्टोरी सुनाता था, जैसे प्लासी का युद्ध मैम, बक्सर का युद्ध, क्योंकि मैं SS का टीचर था तो मैं वो चीज़ें बताता था। लोग मुझे ये कहते थे, जब ये 6 साल की थी, मैंने प्लासी के युद्ध के बारे में बात की, इसकी समझ में क्या आएगा, क्यों बता रहे हो। लेकिन मुझे पता था, कोई भी चीज़ जब हम किसी चीज़ को बताते हैं मैम, अगर आपने एग्जाम्पल में दे के बताऊंगा, हमारे व्यूवर्स के लिए भी ये अच्छा रहेगा, वो अपने बच्चों के साथ काम करें। आपके पास मैम कंप्यूटर है, आपने कोई चीज़ इसमें डाल दी, तो डाल गई और आप उसके कुछ समय के बाद भूल गए, तो आप क्या करेंगे, उसको सर्च करने के लिए आप दिमाग में तो यार कहीं ना कहीं चीज़ मैंने देखा था, तो आप क्लिक नहीं कर पाओगे। तो आप है ना कोई कीवर्ड डालेंगे उसको सर्च करने के लिए, शायद इस नाम से हो सकता है, शायद इससे हो सकता है। तो जैसे ही वो कीवर्ड आया तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी। जी बिल्कुल। इसी तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है मैम। तो जब वो छोटी थी, 6 साल की 7 साल की, मैंने बक्सर की लड़ाई बताई, क्लाइव कौन था, लॉर्ड जनरल कौन था, उसके बारे में जब मैंने बताना शुरू किया, तो जब ये 6th क्लास में मैम हुई, जब ये 6th में पहुंची, तो 6th में जब इसने प्लासी का युद्ध पढ़ा, बक्सर का युद्ध पढ़ा, एकदम रिकॉल हो गया, यार ये चीज़ तो मैंने पढ़ी हुई है। तो पढ़ी हुई तो वो चीज़ें
पहली बार नहीं पढ़ी तो वो चीज़ें रिकॉल हो गई, तो ये क्लास में और बच्चों की ज़्यादा अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होगी। पापा वो चीज़ आपने स्टोरी बताई थी वो चीज़ तो अब आई है, तो वो रिकॉल हो गई, तो इससे क्या हुआ कि बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि ऑलरेडी इसे पता है बाकी बच्चों की अपेक्षा, जी। तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। तो उस सबकॉन्शियस ब्रेन में उस छोटी एज में वो बात करने का ये बेनिफिट हुआ मैम। मुझे लगता है कि वो अडेप्ट भी बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं हर चीज। हर बच्चा अडेप्ट करता है मैम, लेकिन हम बात नहीं करना चाहते ना, बात हम कितनी और लंबी आजकल करेंगे। तो क्या होता है कि माँ बाप मोबाइल दे देते हैं मोबाइल दे बच्चे को देते कि हाँ परेशान ना करे, बस परेशान तो ना करें, मोबाइल। क्योंकि माँ बाप को भी खुद, उसे भी तो खुद मोबाइल देखना है। अभी हम बैठे बाहर बात कर रहे थे, अगर कहते हैं कि पेरेंटिंग कैसे इंपॉर्टेंट है मैम, अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा घर पे, मेरे पास मैं फ़ोन नहीं देखूंगा, तो अगर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो बच्चा भी 2-4 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ना शुरू करेगा। मैं मोबाइल देखूंगा तो बच्चा भी देखेगा। अगर मैं कोई घर पे खेती का काम कर रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो बच्चा भी उसमें इंटरेस्ट दिखाएगा। तो बच्चे इस तरह से दिखाते हैं मैम, तो ज़रूरत है पेरेंटिंग की मैम। और हम बच्चों पर थोकते हैं हमारा बच्चा पढ़ता नहीं, हमारा बच्चा ये नहीं करता, बच्चे सब पढ़ते हैं। बात है पेरेंटिंग की, आप पढ़ाना नहीं चाहते, आप महंगी फीस दे देते हो, अच्छा स्कूल चुन लेते हो, लेकिन अच्छा स्कूल और फीस से कुछ नहीं होता जब तक आप काम नहीं करेंगे मैम। बहुत ज़रूरी है और बहुत चंगा मैसेज दे रहे हो। और ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ पेरेंट्स ਦੇ ਲਈ Yes, ma'am. ਜੋ ਖੁਦ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜਾਨवी, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ नहीं कि पापा बस करो, और टॉर्चर ना करो? नहीं, ऐसा नहीं लगा मेरे को, ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे साथ, क्योंकि ये बल्कि एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस चल रही थी मेरी, वहाँ पर ये क्वेश्चन भी आया था, इतने से बच्चे के ऊपर इतना प्रेशर। तो क्योंकि अगर आपकी डिक्शनरी में वो वर्ड नहीं होगा तो आप उस चीज़ को फील कैसे करोगे कि अब ये है। मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ा था और मेरा इंटरेस्ट उस चीज़ में बनाया गया था। तो अगर किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप उससे बोर नहीं होते हो ना, आप उसमें प्रेशर फील करते हो, बस आपकी वो क्यूरियोसिटी उस चीज़ में और बढ़ती जाती है। और ऐसा नहीं है कि मैं बाकी बच्चों के साथ खेलती नहीं थी, हफ्ते में 1 या 2 दिन में बिल्कुल खेलती थी, सब बच्चों को बुला लेती थी, ऐसे दुकान लगा लेते थे कि चलो, सब ऐसा भी था। तो वो वाली इंटरेक्शन भी बहुत थी, बड़े बच्चों के साथ भी मैं बड़ी रही हूँ। सो आई हैव हैड ओवरऑल, आई कैन से ओवरऑल चाइल्डहुड पूरा था वो डेफिनेटली था कि स्कूल में इतने ज़्यादा कभी मेरे दोस्त रहे नहीं, उस टाइम पे मुझे चाहिए भी नहीं थे टू बी ऑनेस्ट। सो ये इट वाज प्रीटी गुड, प्रेशर जैसा कभी कुछ नहीं था जी। मेरे कोई सहयोगी भी ने, उन्होंने थोड़ी इंग्लिश सुन के थोड़ा प्रेशर ले लिया होना। वो कुछ सवाल थोड़े करना चाहते हैं, वो ज़रूर जान लेने। जानवी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने के लिए और अलग अलग एक्सेंट सीखने के लिए कोई स्पेशल ट्रिक है? मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि अलग एक्सेंट कैसे, एक सीख लेंगे लेकिन दूसरा कैसे, पॉसिबल ही नहीं है। ये काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है, उन्हें लगता है कि कोई ऐसे मैजिक वॉन्ड होगा, मैजिक ट्रिक होगी कि ऐसे करे और फिर किसी को आ गई। ऐसा कभी नहीं होता। आप स्किल के लिए आपको ज़्यादातर प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, पर आपको एक डेफिनेटली पूरा प्लान बनाकर चलना होगा कि आप उस लैंग्वेज में अपने आप को इमर्स कितना कर रहे हैं। आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, कोई भी एक्सेंट आप सीख रहे हैं, उसमें अपने आप को इमर्स करो। फॉर एग्जाम्पल, जो आप ऑलरेडी चीज़ें देख रहे हैं, आप इंग्लिश में अगर हिंदी के कोई गाने सुन रहे हैं, वो इंग्लिश में आप सुनने शुरू कर दो उन्हीं गानों को। आप जितना एक लैंग्वेज में अपने आप को इमर्स करते जाओगे, वो उतनी आपके दिमाग में बैठती जाएगी। आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसे इंग्लिश में पढ़ो, अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं उसे इंग्लिश में देखनी शुरू करो। तो इसी तरीके से आप इमर्स करो। जो छोटे छोटे आपके एक्शंस होते हैं उनको आप इंग्लिश में करना शुरू करो। जो आप दिमाग में सोच रहे हैं, शुरू में अपने आप को फोर्स करो कि आप इन छोटे छोटे थॉट्स को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, इंग्लिश में सोच सकते हैं, और वहाँ से फिर आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू होती है। काफ़ी सारे लोगों के पास ये मिसकंसेप्शन भी होता है कि पहले हमारे पास बहुत सारी है ना इन्फॉर्मेशन आ जाए फिर हम इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे। स्किल में ऐसा कभी नहीं होता। स्किल आप तभी डेवलप कर सकते हो जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो वो बात हो गई कि हाँ मुझे स्विमिंग आती है, हाथ ऐसे चलाते हैं, पैर ऐसे चलाते हैं, बट यू आर नॉट अ स्विमर अनलेस यू गो इन द वाटर। तो वही चीज़ इंग्लिश के साथ है। सारी इन्फॉर्मेशन का आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिस में नहीं लेकर आ रहे हैं। अच्छा, आजकल जानवी किसी ने इंग्लिश कोई एप्लीकेशन भी लिखनी होती है, चैट जीटीपी, जेमिनी, सारे उसका सहारा ले रहे हैं। तो लगता है कि वो यूजफुल है या फिर वो सिर्फ बहुत टेम्पररी है? आई वुड से वो यूज़फुल है अगर उसको ढंग से यूज़ करा जाए तो चैट जीपीटी के साथ मैं खुद की लैंग्वेजेस प्रैक्टिस करती हूँ, तो ऐसे हर कोई प्रैक्टिस कर सकता है। पर अगर आप अपनी पूरी लाइफ को उस पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर समथिंग एज स्मॉल एज राइटिंग एन एप्लीकेशन, तो वो अच्छी चीज़ नहीं है। फिर आपके दिमाग कहीं पर डेवलप नहीं कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि आप ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि वो चीज़ बनाई तो हमें ही सर्व करने के लिए है, तो आप उस सर्व को किस तरीके से अपने यूज़ में लेकर आ रहे हैं, अपने ब्रेन को कैसे ग्रो कर रहे हैं, वो उसमें डेफिनेटली होगा। पर अगर आप उसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं तो वो फिर आपके लिए बेनिफिशियल नहीं। ये तो मैम ये हो जाएगा। मैं बताऊं आपको, आपने देखा होगा कैलकुलेटर आया था पहले के आपने लोगों को देखा होगा, पहले ऐसे जोड़ते थे, हम भी ऐसे ही जोड़ते थे, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 5 इस तरह से जोड़ते थे। लेकिन जैसे ही कैलकुलेटर आया बच्चों की स्किल खत्म हो गई, और हमारे देश के बच्चों का मैथ बहुत अच्छा था। जी बिल्कुल, था ना मैम, बहुत अच्छा था। लेकिन आज बच्चे सबसे डल मैथ में ही हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कैलकुलेटर आ गया था मैम।
ठीक इसी तरीके से अब जो चैट जीपीटी आया, मैं जानवी को बहुत मना करता हूँ, ये क्या करती है, ये सिर्फ सीखने के लिए उसे यूज करती है, लेकिन जितना भी कुछ होता है सारे अपने हैंड से वो नोट्स बनाती है। अब पीएचडी के जो नोट्स बना रही है सब बच्चे चैट जीपीटी से कॉपी करते हैं, इसकी कॉपियाँ इतनी भरी हुई हैं मैम, अभी भी डेली भी, कल भी 2 बजे तक इसने पढ़ाई की है, अपने सारे हैंड से नोट्स बनाती है। उससे क्या होगा, आपकी स्पेलिंग स्ट्रांग होगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन स्ट्रांग होगी, आपका सोचने का दायरा बढ़ेगा। अगर आप चैट जीपीटी पे डिपेंड हो जाओगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें वहाँ से ले लोगे, आप तो यहाँ से तो जीरो हो जाओगे ना। बिल्कुल। और वहाँ पे चैट जीपीटी पे मैक्सिमम चीज़ें सेम ही होती हैं। अब हमें पता चलने लग गया है अगर कोई रेजिग्नेशन भेजता है कि इसने खुद से लिखा है या चैट जीपीटी से लिखा है, वो रेजिग्नेशन की कॉपी देख के समझ आ जाता है कि हाँ ये कहाँ से कॉपी किया हुआ है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशा की पूछना चाह रहे हो? मैं ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਐਚਡੀ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੀਐਚਡੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨੋਵਲ, ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਕਿਸ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜੈਨਜ਼ੀ ਆ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਪ੍ਰਾਈਮ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, उस चीज़ बारे थोड़ा ज़रूर मैं जानना चाहूँगी। थिंक अभी जोन सी मैं नई सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जब भी टाइम मिलेगा तो मैं सोच रही हूँ एक डार्क करके सीरीज़ है, वो साइंस फिक्शन के ऊपर है। और रिसेंट जो मैंने मूवी देखी थी वो भी एक साइंस फिक्शन पे मूवी थी, प्री डेस्टिनेशन, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी थी, काफ़ी इंटरेस्टिंग। काफ़ी देर तक तो मूवी देखने के बाद आपको ऐसा लगता है ये क्या देख लिया मैंने, कुछ समझ में नहीं आया। रही बात बुक्स की, मैं जॉर्ज ऑरवेल को पढ़ना बड़ा प्रेफर करती हूँ, जॉर्ज ऑरवेल को भी पढ़ती हूँ, कुछ रशियन फिलोसफर्स को भी पढ़ती हूँ, एरिस्टोटल, प्लेटो। और अब तो मेरे कोर्स वर्क में इतने सारे ऑथर्स हैं, सोशियोलॉजी के, फिलोसफी के, लिटरेचर के, तो उन सारों को पढ़ना। और बाकी रही बात मेरी जो पर्सनलाइजेशन है तो वो जॉर्ज ऑरवेल की साइड ज़्यादा रहती है। और जब मैंने शुरुआत करी थी तो नॉवेल्स में मैंने रोल्ड डाहल के नॉवेल्स के साथ शुरुआत करी थी, क्योंकि उनमें वो इमेजिनेशन देखने को मिलती थी। वो इमेजिनेशन क्योंकि वो आपको एक अलग वर्ल्ड में लेकर चले जाते हैं कि एक फादर है, उनके साथ बेटा है, वो कैरेवन में रह रहे हैं, तो जहाँ पर विजुअलाइजेशन ज़्यादा होती है, इमेजिनेशन जहाँ ज़्यादा भागती है, मैं उसकी तरफ ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफर करती हूँ। नेटफ्लिक्स और ये सारा कुछ तुसी टाइम कट पाने हो देखने वैसे? खाना खाते टाइम कभी कभार, या फिर जब ब्रेक होता है तो जैसे मेरा टाइम टेबल होता है 2 घंटे पढ़ा, फिर 15 मिनट या 20 मिनट का ब्रेक ले लिया तो उसमें देख लिया, दैट्स इट। जानवी, आपका शेड्यूल क्या रहता है मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, मतलब आप कैसे मेंटेन करती है, थोड़ा बताएं। अगर मैं बात करूँ, पहले मेरा स्केड्यूल बहुत ही ऐसे रूटीन बना हुआ था मेरा कि 1.5 घंटा पढ़ाई, फिर 15 मिनट का गैप, 2 घंटे पढ़ाई, फिर 15 मिनट का गैप, फिर 1.5 घंटा, फिर पूरे 1 घंटे का गैप। तो पहले एक प्रॉपर रूटीन था। अब जो है क्लासेस हफ्ते में 2 दिन होती हैं, 3 दिन होती हैं, कभी रैंडम मीटिंग्स आ जाती हैं, तो उसमें रूटीन नहीं है, पर ऐसे गोल्स होते हैं कि इस हफ्ते मुझे ये काम पूरे करने हैं, तो इस प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करना है, या फिर इस पीपीटी के ऊपर काम करना है, इसके टर्म पेपर के ऊपर काम करना है, ये असाइनमेंट है। तो अब मैं काम करती हूँ गोल वाइज कि हफ्ते के ये गोल्स हैं और मैं कहीं पर भी जा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, कितना भी मुझे टाइम लगे या मिले, तो उस हिसाब से मुझे ये सारे गोल्स ज़रूर कंप्लीट करने हैं। अच्छा, सब तो ज़्यादा केड़े वर्ड्स जो लोग ने वो गलत प्रोनाउंस कर देने, जो गलत प्रोनाउंस करते हैं? हाँ, अब क्या हुआ है ना, इंडिया में एक मिक्स्ड एक्सेंट बड़ा चलता है, तो हम ब्रिटिश जो है वो हमारी एजुकेशन में बड़ा, एकेडेमिया में बड़ा फॉलो करते हैं हम ब्रिटिश एक्सेंट को। जैसे अब वर्ड है एक फ्लैट, एक वर्ड है अपार्टमेंट, तो एक ब्रिटिश एक्सेंट का है, एक अमेरिकन एक्सेंट का है। लोग कभी फ्लैट बोल रहे हैं, कभी अपार्टमेंट बोल रहे हैं। अच्छा, ये दो में दोनों अलग अलग एक्सेंट के वर्ड्स ओके। हैं। और अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, आपकी एक होती है लिफ्ट, एक होती है एलिवेटर, वो भी दोनों अलग अलग हैं। फिर स्पेलिंग्स की बात करें, जैसे ब्रिटिश में हम बोलते हैं COLOUR, सो दैट्स अ प्रॉपर स्पेलिंग। अमेरिकन में COLOR, तो कहीं पर आप COLOR लिख रहे हैं, कहीं पर आप COLOUR लिख रहे हैं। अगर बात करें हम ब्रिटिश की, तो समथिंग इज क्रिस्प्स इन ब्रिटिश और फ्राइज इन अमेरिकन। तो लोग अब जो है ना बड़े कंफ्यूज हो चुके हैं, क्योंकि आप एकेडेमिया में तो ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो कर रहे हो, और आप वैसे आप डेली लाइफ में या फिर सोशल मीडिया पे आप कमेंट कर रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब आप अमेरिकन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। सो पीपल आर वेरी कंफ्यूज। इस चीज़ के ऊपर मैंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था, इम्पोजिशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ में यही था कि कैसे हम यहाँ आकर इन दो एक्सेंट्स के बीच में से फंस चुके हैं, क्योंकि देर इज़ नो सच थिंग एज एन इंडियन एक्सेंट, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है ही नहीं, तो हम अपनी साइड से बना देते हैं अपना एक्सेंट। और रही बात गलत प्रोनाउंसिएशन की, एक वर्ड है EPITOME, लोगों को लगता है ये एपिटोम है, इट्स एक्चुअली एपिटमी। तो काफ़ी लोगों को लगता है दिस एपिटोम, ओ एपिटोम ऑफ हैप्पीनेस, तो इट्स एक्चुअली एपिटमी। और प्रोनाउंसिएशन को भी काफ़ी लोग प्रोनाउंसिएशन बोलेंगे, वो बड़ा, अब तो इट्स प्रोनाउंसिएशन। एक्सेंट को भी लोग एसेंट बड़ा बोलते हैं, सो दैट्स एक्सेंट। और कुछ 2-3 वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे एक्सेप्ट एंड एक्सपेक्ट, लोग उसमें बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं। और प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो स और श की साउंड में लोग बड़ा कन्फ्यूज़ होते हैं, और इंडियंस को इस चीज़ का नहीं पता रहता
जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास साउंड्स एक व की साउंड है विच इज़ डब्ल्यू, एक वी की साउंड है विच इज़ वा. तो अगर हम बोलते हैं WET दैट्स वेट, अगर हम बोलते हैं VET दैट्स वेट. तो लोगों को लगता है ये दोनों सेम है, एक्चुअल में वो सेम नहीं है. W और V की साउंड में देयर इज़ अ डिफरेंस. तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਡੇ तक ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਨਾउंस करना है वो ज़रूर दसो. डेफिनेटली. तो फॉर एग्जाम्पल तो अब ब्रिटिश और अमेरिकन में वही डिफरेंस आ जाता है. तो अगर हम बात करें ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश क्या करेंगे जब व्हेन वी स्टार्ट फ्रॉम मंडे, सो इट्स मंडे डे, तो इट्स ए आखिरी में, सो इट्स मंडे. फिर ट्यूसडे में हम लोग बोलते हैं ट्यूसडे विच इज़ नॉर्मल इंडियन एक्सेंट अपना न्यूट्रल. अगर बात करें ब्रिटिश की, सो दैट्स ट्यूसडे, वो च की साउंड आती है ट्यूसडे. फिर एक और आ जाता है, फिर जब हम बोलते हैं वेडनेसडे तो हम क्या बोलेंगे नॉर्मली, ओके इट्स वेडनेसडे टुडे, दैट इज़ वेंसडे. तो वो भूल जाते हैं डी है बीच में, वेंसडे. फिर बात करें अगर हम थर्सडे की, तो हम बोलते हैं ऐसे थर्सडे. तो अगर अमेरिकन में बोल रहे हैं सो इट्स थर्सडे, और अगर हम ब्रिटिश में बोल रहे हैं सो थर्सडे. अगर हम बोले फ्राइडे, तो फ्राइडे तो बहुत सिंपल है, सो इट्स फ्राइडे इन अमेरिकन एंड फ्राइडे इन ब्रिटिश. फिर हम बात करें अगर सैटरडे की, सो इट्स सैटरडे इन ब्रिटिश एंड देन सैटरडे. तो वो अमेरिकन में आपका जाता है, एंड देन इट्स संडे. तो उस ड की प्रोनाउंसिएशन पे काम करने की ज़रूरत है. बाकी अगर हम इसकी बात करें सारे ये डेज ऑफ द वीक की, तो इंडियन न्यूट्रल प्रोनाउंसिएशन उसमें चलती है सर. हमारे तो यहाँ पे सैटरडे ही लोगों ने बहुत दिनों के बाद बहुत टाइम के बाद बोलना शुरू किया. Yes. ज़्यादातर लोग जो है Saturday. सैटरडे बोलते ਸੀ. ਯੈਸ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਹਰਮਨ ਕੌਰ ਜੀ ਵੀ ਨੇ. ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैम मेरा सवाल थोड़े तो ये है कि एक काफ़ी फेमस टंग ट्विस्टर है, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चखाई. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਸੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੰਗ ਟਵਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸੈਂਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, प्लीज़ ਮੈਨੂੰ बोल के दसोगे? ठीक है, तो अगर मैं अपनी साइड से टंग ट्विस्टर ले सकती हूँ या आपके वाला लेना है? ਇਹ वाला ਤੁਹਾਨੂੰ याद है? ये तो हिंदी का हो गया, फिर मैं इंग्लिश में लेकर आती हूँ. इसको हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके. ओके. तो एक बड़ा ही फेमस टंग ट्विस्टर है, वो स और श के साउंड पे फोकस करता है, एंड दैट इज शी sells seashells by the seashore. तो लोग श को स बोल देते हैं. सो इफ यू टॉक अबाउट ब्रिटिश, सो इट्स she sells seashells by the seashore. And then we talk about American, she sells seashells by the seashore. If we talk about Australian, तो एक बड़ा ही famous tongue twister है, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. And then if we talk about Cockney, Scottish बड़ा interesting accent आता है यहाँ पर, red lorry, yellow lorry, red lorry, yellow lorry. So इसके बाद अगर हम बात करें, if we talk about Cockney, alright, so pronouncing this tongue twister, mate, so it's going to be something like she sells seashells by the seashore, yeah. And then we have टंग ट्विस्टर तो ये हो गए. अगर हम बात करें आपके वाले टंग ट्विस्टर की, तो हिंदी में भी मैं बोल कर देखती हूँ. चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई. यस, नाइस. पहली बार ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ याद किया जस्ट? And बचपन तो याद है क्लास तो. इसी के साथ कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वर्ड आते हैं इंग्लिश में, और मुझे बड़े वर्ड्स बोलने में बड़ा मज़ा आता है. आपका कोई फेवरेट या फिर कोई ऐसा फेमस हो जो आपको बहुत पसंद हो बोलना? डेफिनेटली मैं वही बता रही हूँ आपको. मुझे बड़ा मज़ा आता है. कुछ ऐसे बड़े वर्ड्स है, फॉर एग्जांपल न्यूमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक silicovolcanoconiosis, then we have supercalifragilisticexpialidocious, and then we have hippopotamonstrances equipedaliophobia. तो ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स हैं, मुझे बोलने में बड़ा मज़ा आता है इन्हें. एंटी एस्टैब्लिशमेंटेरियनिज्म. ਅੱਛਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗ ਜੇਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ सक्सेसफुल ਹੋए? मेरा डेफिनेटली खुद का इंटरेस्ट बड़ा रहा इन चीज़ों में. अभी भी मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने ये बड़े बड़े वर्ड्स सीखे. मुझे शौक रहता है कि कुछ ना कुछ तो नया मिले इसमें से. अभी इस एक्सेंट में अच्छा ये चीज़ इंटरेस्टिंग है, इसमें ये चीज़ इंटरेस्टिंग है. पापा ने तो मुझे बस बताया कि पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, कि मेरे को ये वाला एक्सेंट सीखना है, तो इसकी वीडियोज़ कहाँ से मिलेंगी. वो फिर ढूंढते थे, कहीं ना कहीं से तो मिलेगी. वो मेरे साथ घूमते थे कि कोई ना कोई तो सिखाएगा. प्रैक्टिस सारी मेरी थी. सो इवन आई हैड एन इंटरेस्ट. दैट्स ग्रेट. हरमन जी की पूछना चाह रहे हैं? मैं ये सवाल करांगी कि यूजली कहते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. ਯੂਜਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੀਪੀਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬॉयਜ਼ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ.
ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਫਰਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ अच्छे रिजल्ट भी अगर हम बात करें रीअपियर की तो उसके लिए तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और उसके अलावा अगर हम बात करें ऐसे कि इंग्लिश में बच्चे अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाते हैं और क्योंकि पंजाब बोर्ड से हैं या फिर किसी स्टेट बोर्ड से हैं या फिर वो बाहर चले जाते हैं तो अच्छे से लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले एक्सेंट इज़ जस्ट एन एक्सेंट, इट्स मेंट टू कम्युनिकेट। तो अगर आप कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रहे हैं दैट्स मोर देन इनफ। अगर बात करें ढंग की प्रोनाउंसिएशन की, तो ढंग की प्रोनाउंसिएशन के लिए आपको रीडिंग बहुत करनी पड़ेगी। पहले आप चीज़ों को सुनो, सुनने के बाद फिर उसमें आप कुछ ऐसी साउंड देखो जिस पे आपने फोकस करा। फॉर एग्जांपल टी की साउंड है या फिर आर की साउंड है। अब काफ़ी लोगों की इंडिया में आर की साउंड बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो र र र ऐसी बहुत उनकी स्ट्रॉन्ग साउंड होती है, तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करो कि इट्स सिंपल लाइक र र र। तो फिर उसके बाद एक आर्टिकल दिखाओ या फिर कोई भी आप बुक लेकर आओ, उस बुक में से फिर आप देखो कि यहाँ पर इस वर्ड में आर की प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ पर आर लेटर है, फिर आप उसको वैसे ही प्रोनाउंस करके देखो। सो फर्स्ट लिसन टू समथिंग, फिर उसके बाद उसी को प्रैक्टिस करो बाय रीडिंग आउट लाउड, वहाँ से आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। शुरू की 2 महीने की मेहनत होती है, लोगों को लगता है कि जल्दी से आ जाए। हाँ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਗੋਇੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ मार्क्स ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, इंप्रूव कर सकते हैं। यस आई वुड से मेरे घर पे भी हर कोई हरियाणवी में बोलता है, सो तो अगर मैं बात करूँ वो किस तरीके से कर सकते हैं, हर किसी के पास अब फ़ोन्स हैं। 8th 9th क्लास में भी बच्चे को फ़ोन पकड़ा दिए जाते हैं, पर उस फ़ोन को यूज़ कैसे कर रहे हैं, अगर आप उसे ढंग से यूज़ कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली आराम से इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इसमें आपको सिंपल सी जो चीज़ें करनी है, आपको एक लैंग्वेज में अपने आप को पूरी तरीके से इमर्स करना है। आप इमर्स कैसे करेंगे, आपने कोई भी अच्छा सा शो देखा, उसमें आप कोई पढ़ाई वाला शो भी देख लीजिए, कुछ भी जिसमें आपका ब्रेन भी डेवलप हो, उसमें पहले आप सबटाइटल्स के साथ किसी चीज़ को देखो। आपको शुरू में 1 से 2 हफ्ते चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, आप बोलेंगे ये क्या बोल दिया जानवी ने, कुछ पल्ले तो हमें पड़ ही नहीं रहा है। पर जब आप तीसरे हफ्ते में आएंगे या फिर जब आपके 21 डेज पूरे हो जाएंगे, क्योंकि इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट, तो जब आपके वो 21 डेज पूरे हो जाएंगे आप धीरे धीरे अपने आप समझना शुरू कर देंगे। क्योंकि एक लैंग्वेज को सबसे आसान तरीका जो है सीखने का, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ सीखना है। मतलब अगर हम सोच रहे हैं ग्रामर आ जाए, फिर ये भी आ जाए, फिर वो भी आ जाए, वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत ज़्यादा रट लें, ऐसा कभी नहीं होता है। आप कॉन्टेक्स्ट में सीखो, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ो, अपनी जो बुक्स हैं उन्हें पढ़ो, अपनी बुक्स में अगर आपको कोई नया वर्ड मिल रहा है उसे अंडरलाइन करो, फिर उसको देखो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा गया है और फिर उसको खुद से प्रैक्टिस करो। तो इस पर अगर आप डेली बेसिस पे 30 to 40 मिनट्स आप देते हैं, लिसनिंग पे 10 मिनट्स, देन मिमिक करना उस चीज़ को, रीडिंग पे 10 मिनट्स, फिर उसमें देखना नए वर्ड्स जो आए फिर उनको प्रैक्टिस करना, you'll be absolutely fine in 3 to 4 months। 21 डेज ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 21 डेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल 21 डेज। बॉयज लास्ट ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ हैं, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ जी बॉयज नहीं, गर्ल्स भी फेल ਹੁੰਦੀਆਂ गर्ल्स भी करती ਵੀ हैं, ਕੈਨ बिल्कुल करती हैं। ਸੋ 21 ਡੇਜ਼ ਇਜ਼ ਇਨਫ ਹੈ ਨਾ, ਆਰ ਇਨਫ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। नहीं 21 डेज आर इनफ टू Habit- बिल्ड अ हैबिट, habit एक हैबिट को बनाने से। बनाने के लिए, क्योंकि शुरू में आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। शुरू में अभी जैसे मेरी छोटी सिस्टर है, तो उसको अगर अब हम न्यूज़ दिखाते हैं तो उसे अभी तो ऐसा लगता है कि समझ में नहीं आ रही, पर आफ्टर 21 डेज माई फादर एंड आई वी बोथ नो कि हाँ ठीक है इसको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। तो इट टेक्स 21 डेज टू बिल्ड अ हैबिट फॉर यू टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू ग्रास्प द फाउंडेशन। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਵਨ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਯੰਗ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਆਈ ਥਿੰਕ 12 ਇਅਰਸ 올ਡ। She's 13, she turned 13 a few days back। ਓਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ? पापा ज़्यादा सिखाते हैं, मेरा तो पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है, पर हाँ डेफिनेटली उसको ऐसे ढंग के शोज़ दिखाना है जिससे वो कुछ सीख सकती है, फिर उसके बारे में उससे पूछना स्कूल में क्या हुआ, इस चैप्टर में क्या था, कितना होमवर्क हुआ। वो तो मेरे पापा मेरे साथ भी करते थे, मैं भी उसके साथ यही काम करती हूँ और मेरे पापा भी उसी के साथ यही काम करते हैं, सो इट्स द सेम प्रोसेस। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਏ? क्योंकि कोई बेटर इंग्लिश बोल रहा होता है, आप अगे चुप हो जाते हैं कि हाँ शायद मैं कोई गलती ना करदा। इस चीज़ को एक तो इसे हम बोलते हैं पैनिक लूप, कि आप पहले आपके अंदर ये डर होता है कि लोग आपको जज ना करें, और आप हर बार जब भी आप अपने आप को चुप कर देते हैं या फिर आप हेजिटेट होते हैं तो आप उस लूप को और ज़्यादा रीइंफोर्स कर रहे हैं, वो आपकी हैबिट में और ज़्यादा आ रहा है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, द 3 सेकेंड रूल। आपको क्या करना है, अगर आप 3 सेकेंड से ज़्यादा लेते हैं एक क्वेश्चन को आंसर करने में, तो फिर 3 सेकेंड के बाद आपके दिमाग में ये सारे थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। व्हाट इफ़ यू से समथिंग रॉन्ग, व्हाट विल हैपन इफ पीपल स्टार्ट जजिंग यू, तो ये सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, तो आपका ब्रेन जो है वहाँ
वहाँ पर स्टक हो जाता है, बड़ा कंफ्यूज होता है, तो आपकी वही वाली हैबिट फिर रीइंफोर्स हो जाती है. व्हाट आई वांट यू टू डू, गिव योरसेल्फ सिंपल क्वेश्चंस, देन आंसर दो सिंपल क्वेश्चंस विद इन 3 सेकंड्स. तो अपने आइडियाज़ को ये मत सोचो कि आंसर करने से पहले अपने आइडियाज़ फॉर्म करो, आप दिमाग में फिर बोलो, बोलते टाइम अपने आइडियाज़ को फॉर्म करो. बस आपने एक बार जब बोलना शुरू कर दिया ना तो आप बोलते चले जाते हैं. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग दैट पीपल आर गोना जज यू, पीपल विल मेक फन ऑफ यू और पीपल विल मॉक यू, आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द पीपल. मुझे अभी भी ध्यान है व्हेन माय फादर यूज्ड टू टेक मी ऑन मेट्रोज, वहाँ पे चिल्ला चिल्ला कर हरियाणवी में बात करते थे मेट्रो में मेरे साथ, और मैं देखती थी हर कोई आपको देख रहा है, ऐसे मत बोलो ऐसे. और मेरे फादर फिर और ज़्यादा बोलते थे कि मैं तो बोलूँगा, तू किसी में भी बोल. तो वो जो है, ही ऑलवेज यूज्ड टू से वी आर नॉट डूइंग इट फॉर द पीपल, वो हमारी चीज़ है, इट्स पर्सनल, यू सो यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. अच्छा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਆਨਸਰ, ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਨੇ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ. ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਂਬੀਐਂਸ ਹੁੰਦਾ है? एम्बियंस भी होता है किसी एक्सेंट में और ऑम्बियंस भी होता है, बट अगर हम कॉमन प्रोनाउंसिएशन की बात करें सो इट्स ऑम्बियंस. एंटरप्रेन्योर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ एंटरप्रेन्योर? एंटरप्रेन्योर ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ. और women ਹੁੰਦਾ है या फिर woman ਹੁੰਦਾ है? वो प्लूरल और सिंगुलर के ऊपर डिपेंड करते हैं. अगर आप सिंगुलर के ऊपर बात कर रहे हैं तो इट्स वुमेन, अगर आप प्लूरल के बारे में बात कर रहे हैं बहुत सारी औरतें हैं सो इट्स वुमेन. ओके, और यूरोप ਹੁੰਦਾ है या फिर यूरोप ਹੁੰਦਾ है? दोनों एक्सेंट में अलग अलग होता है, वन इट्स यूरोप एंड अनदर वन इट्स यूरोप. ओके, और मेरे दिमाग 'ਚ ਹੋਰ भी बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हैं. हैरेसमेंट ਹੁੰਦਾ है या हरासमेंट ਹੁੰਦਾ है? हरासमेंट होता है. हरासमेंट ਹੁੰਦਾ है. ओके, एक और भी ऐसा वर्ड होता है, साम करके एक वर्ड होता है जिसकी स्पेलिंग होती है PSALM, तो उसमें L भी साइलेंट है, P भी साइलेंट है, सो इट्स जस्ट साम. ओके, और वेजिटेबल्स ਦੇ ਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗਲਤ ਲੈਂਦੇ ਆ? वेजिटेबल्स में इट्स अनियन और Onion. अनियन ना, राइट, ये बिल्कुल सही सीगा. और कोई वेजिटेबल्स ਦੇ और नाम? तो वेजिटेबल्स में हमारे पास जैसे ब्रोकली होता है, तो लोग उसे कोई ब्रोकोली भी बोलता है, सो इट्स ब्रोकली, ब्रोकली. तो एक तो वो वाली वेजिटेबल होगी, और एक तो लोग वेजिटेबल ही गलत बोलते हैं, वो बोलते हैं वेजिटेबल, इट्स वेजिटेबल. एक होता है आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो वो ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट. ओ या, अच्छा ब्रेकफास्ट, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਨਾਈਸ. ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜੇ. ਰਾਸ਼ੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੋਇਮਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ. मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाह रही थी कि शशि थरूर तो नहीं है इंस्पिरेशन? शशि थरूर इंस्पिरेशन नहीं कहूँगी, पर उन्हें सुनना मुझे बहुत पसंद है. उनकी बहुत सारी स्पीचेस मैं सुनती हूँ, उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ भी देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन्हें देखकर, और किसी ना किसी दिन मैं डेफिनेटली उनसे मिलना भी चाहूँगी. नहीं, शशि थरूर की अंग्रेज़ी समझ जाए तो मतलब माना जाता है अंग्रेज़ी सीखना सफल हो गया. नहीं, समझ तो मैं लेती हूँ, डेफिनेटली समझ भी लेती हूँ. मेरे फादर अभी भी मुझे बोलते हैं उन्हीं के लेवल पर तुम्हें बोलना है, सो या. मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है कि वो ब्रिटिश एक्सेंट में बात करते हैं और यूजुअली, सो आई ऑलरेडी स्पीक इन अ ब्रिटिश एक्सेंट, तो उनसे मिलने का बड़ा शौक है मेरा. अच्छा, जितनी मेरी जानकारी है, आप समालखा से हैं, तो हरियाणवी लोग जब बात करते हैं तो ऐसी लठमार तरीके से वो बात करते हैं, लगता है कि लड़ रहे हैं. तो और आपने बिल्कुल अलग ही, मतलब ख्याल कैसे आया कि इतनी सारी भाषाएं जो हैं अंग्रेज़ी से ही जुड़ी हुई सीखनी और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से प्रेजेंट करना भी उनको? ये हरियाणवी में जब मैं बात करती हूँ मेरी भी लठ मार ही लगती है उस टाइम पे, पर अगर बात करें इंग्लिश की, ये ख्याल कैसे आया, ऐसा कभी ख्याल मेरे दिमाग में आया ही नहीं, क्योंकि मेरे फादर ने मुझे इंग्लिश पे काम करना शुरू करा, फिर उसके बाद मेरा बस इंटरेस्ट बनता चला गया और क्यूरियोसिटी बनती चली गई. तो फिर जैसे हम ये फॉरेनर्स के पास जाते थे, ब्रिटिश, अमेरिकन्स, इनसे जब मैं बात करती तो मुझे दिखता था इनका एक्सेंट बड़ा अलग है, कि ये उस तरीके से, हमारे तरीके से ये लोग नहीं बोल रहे हैं. BBC न्यूज़ जब मैंने सुनी तो हमारे तरीके से ये लोग नहीं बोल रहे हैं, तो वो क्यूरियोसिटी थी कि अब ये मुझे भी सीखना है. फिर मुझे किसी ने बताया कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाह रहे हो सो स्पीक इंग्लिश इन द राइट मैनर. राइट मैनर किस तरीके से, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश के बहुत सारे एक्सेंट्स हैं, क्योंकि हमारी एक लैंग्वेज है ही नहीं, हमारे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, एक स्टेट में भी अलग अलग लैंग्वेज और एक्सेंट्स हैं. तो अगर आपको कोई न्यूट्रल एक्सेंट, हमारे पास ऐसा कोई प्रॉपर इंडियन एक्सेंट है नहीं, हालांकि अब है कंसिडरिंग द पॉपुलेशन, तो उस इंग्लिश को राइट तरीके से बोलने के लिए सो आई स्टार्टेड लर्निंग द ब्रिटिश एक्सेंट. ਓਕੇ, ਨਾਈਸ. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ कि किस चीज़ से फोकस कर रहे हो? नहीं, ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं, हमने कभी दिखाया नहीं किया, शो ही नहीं किया हमने कहीं. अच्छा, पापा बेटा चुपचाप काम करते थे. हमारा घर पे जैसे ये पढ़ती थी उसका भी एक टाइम टेबल होता था. जब ये उसमें 5th क्लास में थी तो मैं क्या करता था, हर क्लास में जैसे क्लास चेंज होती थी हर क्लास में मैं पहले ही एक चार्ट बनाता था पूरा
ये बच्चों के लिए भी मैसेज हो सकता है। जैसे भी अब आपने पूछा था, मैम ने पूछा था कि बच्चों को कैसे इंटेलिजेंट बनाया जाए और कैसे उन बच्चों की अपीयर वो ना आए, रीअपीयर ना आए। तो उसके लिए मैं क्या करता था, पहले ही जैसे बुक आती थी ना, बुक आते पहले मैं चार्ट बना देता था। चार्ट बना के SST में कितने लेसन है, लेसन के नाम लिख देता था। साइंस के कितने लेसन है, साइंस के नाम लिख देता था। हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी के चैप्टर के नाम लिख के दीवार पे ऐसे चिपका देता था। साइड में टाइम टेबल लगा होता था दीवार पे ही। उस टाइम टेबल में 6 बजे उठने का टाइम होता था। 6 बजे उठने के बाद 7 बजे तक आपको ये करना है, उसके बाद स्कूल जाना है। छुट्टी के दिन का अलग टाइम टेबल होता था, स्कूल का अलग होता था। 2:30 आप घर आओगे, 2:30 से आके 3 o'clock तक 30 मिनट आप रेस्ट करोगे। उसके बाद आपको होमवर्क ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, इसके बाद फिर ये काम रहेगा, इसके बाद फिर आपको BBC सुननी है, इसके बाद ये सुनना है। मतलब पूरा टाइम टेबल सेट था। तो हम क्या करते थे, फिर दूसरी चीज़ें ये भी हैं, आपने देखा होगा किसी भी सब्जेक्ट को, आप कोई भी हिस्ट्री उठा लो या आप इंग्लिश उठा लो, कितने चैप्टर होते हैं मैक्सिमम? 15-16 चैप्टर होते होंगे। तो 15-16 चैप्टर के लिए अगर हम सारे 6 सब्जेक्ट होते हैं 6th में, 6 के 6 सब्जेक्ट को अगर मिला लें, कितने चैप्टर हुए सारे? अगर हम 15 भी ज़्यादा से ज़्यादा माने, कितने हुए? तो 90 हुए ना। तो 90 सब्जेक्ट को, यानी कि 90 चैप्टर्स को 365 दिन के लिए क्यों पढ़ना? तो हम उसे क्या करते हैं, 3 या 4 महीने में जब मैं चार्ट लगा देता था, मैं कहा जानवी इसको पढ़ो, NCERT पढ़ाता था, ये उसको पढ़ती थी और उसमें से कुछ भी क्वेश्चन कर लो। मैंने एक वो बनाया हुआ था, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, मैं इससे पूछता था। कोई भी चैप्टर लिया, ये क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है। अगर जर्नलिज्म वाला फंडा अपनाया, 5 हाँ, तो ये मैंने बना रखा था फंडा। अगर ये उसके सारे आंसर दे देती थी, इट मीन ये चैप्टर क्लियर, तो मैं उस पर टिक कर देता था, चैप्टर क्लियर, नेक्स्ट चैप्टर क्लियर। तो इस तरह से हम 3-3.5 महीने में चैप्टर क्लियर कर देते थे और उसके बाद फिर जैसे सीखना है उस पर फोकस करते थे। ऐसे कर करके 2 साल में एक साल में 2 क्लासें होती चली गई। और रीडिंग च भी बहुत बढ़िया हो गया ना। हाँ, तो हर चीज़ पे उस तरीके से काम किया। तो चीज़ें टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, अगर आप टाइम टेबल बना के कोई काम करते हो, आपका भी तो एक टाइम टेबल है, इतने बजे आपका लाइव जाएगा तो जाएगा, चाहे आप कहीं भी हो, जाएगा जाएगा, आप उस हिसाब से चलेंगे आप। तो जब तक आपके दिमाग में और आपकी जर्नी में अगर आपका डिसिप्लिन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। डिसिप्लिन होना जरूरी है। तो आज के जो बच्चे हैं वो डिसिप्लिन में नहीं है, फ़ोन देख रहे हैं, अरे कर लेंगे अभी थोड़ी देर में, अरे ये कर लो पहले, कर लेंगे। डिसिप्लिन जरूरी है। हमें कहीं शादी में जाना है, कुछ जाना है, मैंने इसको मामा तक नहीं भेजा। इसकी मम्मी जब मामा के यहाँ जाती थी, मैं उसको छोड़ के आ जाता, इसको बिठा के ले आता था। और तब तो ये बताऊँ 3 साल की थी, 2.5-3 साल की, तब भी मैंने इसको नहीं छोड़ा जब 2 साल की थी, क्योंकि 3-3.5 साल की तो ये फर्स्ट क्लास में चली गई थी, तभी मैंने इतना सिखा दिया था इसको। तो जब ये वहाँ मामा के यहाँ इसकी मम्मी जाती थी 2-3 दिन के लिए, तो मैं बाइक पे लेके आ जाता था। कई बार ये बाइक पे सो जाती थी, ऐसे चुन्नी से बांध देता था इसको अपनी तरफ, वो करके बाइक पे लेके आता था। अच्छा, मतलब स्ट्रगल जो है तो साथ लेके आते थे, साथ जाते थे, तो कभी उस तरह की बात ही नहीं आई। कॉन्फिडेंस के लिए, जैसे कॉन्फिडेंस की बात होती थी, बाइक पे चलते थे, मैं जोर से चिल्ली मरवाता था, मैं जोर जोर से चिल्ली मार, लोग देखते थे, भीड़ में मैं लगा चिल्ली, ताकि ये चीज़ हो जाए। ये कहती थी पापा लोग देख रहे, मगर यही तो मैं चाह रहा हूँ कि तेरे दिमाग से ये चीज़ें निकले कि लोग देख रहे हैं, तो देखने दो। चिल्ली मरवाता था बहुत जोर जोर से, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला गया। कहीं भी जाते मैं जानी बोलना शुरू करो, बोल देती थी, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। ट्रेड फेयर में जाते थे, मैं इसको अकेला छोड़ देता पूरी भीड़ में, मैंने कभी ऐसे उंगली नहीं दी इसको। 13 साल की बच्ची थी, 13 साल के बच्ची को आज कौन छोड़ता है। ये स्मालखा से ट्रेन में बैठती थी, 90 किलोमीटर का कॉलेज है, DU से इसने ग्रेजुएशन की है। 13 साल की बच्ची का एडमिशन हो गया था वहाँ पर। ट्रेन से जाती थी, ट्रेन से आती थी, डेली अप डाउन करती थी, 13 साल का बच्चा। क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा ना, वो चीज़ें तो वो कॉन्फिडेंस तो बनाना पड़ेगा और बच्चे पे फेथ करना पड़ेगा, पीछे आप दोनों चीज़ें रहती हैं। अच्छा, आप सबसे कम उम्र के PhD स्कॉलर रहे, BCA, BTech और MBA के स्टूडेंट्स को आपने पढ़ाया, तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? क्योंकि आजकल देखिए, आजकल का जो समय है, वैसे गलत बात है कि अगर कॉलेज के स्टूडेंट्स अपने टीचर से बदतमीज़ी से बात कर देते हैं, क्योंकि कई जगहों से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं। तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि वो क्रॉस क्वेश्चन अगर आपसे करते हैं, एक तो आपको वो भी मालूम होना चाहिए, उसका जवाब मालूम होना चाहिए। और सर आपसे भी पूछूंगी कि जब इतनी कम उम्र में वो इतना बेहतर प्रदर्शन करती है तो आपको कितनी खुशी होती है, क्योंकि आपका पीछे पूरी मेहनत रही है। अब तो मैम ऐसी खुशी नहीं, बस अच्छा लगता है कि कर रहा है, बल्कि अब तो और ज़्यादा वो रहता है, ये कहते हैं कितना पीछे लगोगे, बल्कि मेरे को रहता है इसने ये चीज़ें भी रहेगी, ये चीज़ भी रहेगी। अब तो मेरे दिमाग में ये रहता है, खुशी की तरफ तो मेरा दिमाग जाता ही नहीं। ये हमेशा से है। मैं अगर किसी इवेंट पर हूँ तो इवेंट पे अगर मैंने कोई स्पीच दी और हर कोई स्टैंडिंग ओवेशन दे रहा है, वाओ जानवी, मैं जाती हूँ इनके पास, यहाँ क्यों नहीं ये बोला, यहाँ क्यों नहीं ये ऐड किया, ये कहाँ था। सो ये चीज़ तो बड़ी रहती है। और वो जो आपका क्वेश्चन था, मैं जब असिस्टेंट प्रोफेसर थी तो मेरी क्लास में ये रूल होता था कि इफ़ यू वांट टू सिट इन माय क्लास, तो अगर आप
आप सीरियस हैं तो आप बैठो मेरी क्लास में, अगर आपको नहीं पढ़ना है मेरे से तो आप अपनी अटेंडेंस लो और जाओ यहाँ से। वो अटेंडेंस अपनी देते थे और चले जाते थे क्लास से। एक बार तो ऐसे भी हुआ, नई नई क्लास थी वो, पहली बार मैं गई थी, काफ़ी सारे बच्चे उठकर चले गए, अप्रॉक्सीमेटली क्लास के 80% बच्चे तो उठकर ही चले गए थे। मैं अब ठीक है, अब मज़ा आएगा पढ़ाने में, अटेंडेंस मैंने फिर भी नहीं दी थी किसी को, बट स्टिल तो हाँ, तो मैं पहले से ही अपने बच्चों को ऐसे कि हाँ सीरियस हो तो आप मेरी क्लास में बैठो, अदरवाइज आप मेरी लेकिन क्लास में मत 80% बच्चे क्यों चले गए? ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ कि ਇਹ छोटी टीचर बच्ची। ਜਿਹੜੇ ਨੇ छोटी- छोटे छोटी ने, है, अच्छा इसलिए छोटी चले है। गए। और फिर बाद में कितना हो गया, वो उसकी क्लास ही नहीं और छोड़ते मेरी थे। क्लास में आते थे। अच्छा और टीचर दूसरे भी ये कहते थे कि जानवी प्लीज़ आप ले हैंडल कर लो ना इनको। दो क्लास भी मर्ज कर देते थे वो। नाइस। अच्छा, मतलब पहला बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि शी कि इज, इतना हमें वो कभी कभार अपनी ईगो पर भी ले जाते थे कि इसने हमसे क्वेश्चन कैसे कर लिया, या फिर इसने हमें ऐसे कैसे बोल दिया, ओ दैट इज़ इनकरेक्ट, आप ऐसे नहीं बोल सकते, या फिर मेरी क्लास में आप इतना मत बोलो, थोड़ा सा चुप होकर बैठो। तो ये थोड़ा बच्चे ईगो पर भी ले जाते थे, बट उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे मेरी और स्टूडेंट्स की बॉन्डिंग हुई तो मुझे बड़ा मज़ा आने लगा पढ़ाने में, फिर वो ऐसे बल्क में आने लगे बहुत सारे। पीछे अभी एक घटना हुई थी, हम अभी टीचर ट्रेनिंग कर रहे थे और उसमें लगभग 200 के आसपास टीचर थे। तो अब मैनेजमेंट को तो पता था जानवी क्या है, और सभी टीचर तो नहीं जानते। तो वहाँ बैठे, मैं स्कूल का नाम तो नहीं बताऊँगा क्योंकि उन्होंने कहा था कि बताना नहीं, तो हम गए। तो जब हम गए तो टीचर्स मैनेजमेंट की वजह से बैठना पड़ा उनको। जानवी ने बोला, इसने बोलना शुरू, 3 दिन की वर्कशॉप थी वो। तो जब जानवी ने बोलना शुरू किया, शुरू के 2 घंटे थे उसमें उनका मन नहीं लगा उस तरीके से। उनके दिमाग में ये रहा कि छोटी सी बच्ची, हम PhD होल्डर, PhD किए हुए हैं, उसमें कितने सारे सब कुछ हैं, हम MSc हैं, PhD हैं, सारी चीज़ें हैं, ये हमें सिखाएगी। तो वो चीज़ें उनमें बनी रही। तो लेकिन जब इस 2 घंटे जब बीत गए, उनका मन इतना लगा, वो सुबह टाइम से आए, टाइम से गए। उन्होंने फिर बाद में ये बात बताई, जब उनका इंटरव्यू लिया तो बोला कि हमें शुरू में लगा कि ये लड़की हमें क्या सिखाएगी, लेकिन जब हमें लगा हमें तो इससे कम से कम 10 दिन सीखने की ज़रूरत है। जी सर, आपके स्कूल में नहीं कहते सब लोग कि क्या बात है, कितनी बेटी आपकी होनहार है, तब खुशी होती है कि नहीं आपको? खुशी तो मैम ठीक है, खुशी तो होती है, पर अभी तो बहुत सीखना है मैम। क्योंकि टीवी पे देखना, जानवी इज़ वेरी फेमस नाउ, तो उन्हें देख के तो कहते ही होंगे ना कि ऐसे क्वेश्चंस मेरे आगे नहीं करते हैं, ये जब मैं चली जाती हूँ तब फिर इनका आंसर देते हैं अच्छे से। अच्छा क्यों तुसी हमें, मतलब तुम्हें लगता है कि नहीं हाले बहुत सीखना है इसलिए? अभी तो बहुत सीखना है मैम, अभी तो जिनकी पूरी लाइफ ही सीखने की होती है मैम। हाँ जी, ऑब्वियसली पूरी लाइफ होती है सीखने की, क्या सीखा, कुछ भी नहीं है। और सीखना तो पूरी उम्र चलता है, तब भी आप सीख नहीं पाओगे। और स्टूडेंट रहने हो तुसी हमेशा मैम, कब तक जिंदगी पर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन और है, फिर मैं दो तुम्हारे लिए कुछ कहना चाह रही थी, क्योंकि तुम्हारी मेहनत भी बहुत है और तुम्हारे हौसले भी बड़े, लेकिन आपने कहा एक के बाद एक चीज़ें जो हैं वो फिक्स तय रहती हैं, अब ये करना है, अब ये करना है। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि दबाव मुझ पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो जैसे आपने कहा कि बहुत कम उम्र में मम्मी वहाँ चली जाती थी, आप 3 साल की थी, आप वापस ले आते थे, 1-2 दिन के लिए की बात होती थी कभी, पर लेकिन ऐसा लगा कि जैसे बाकी बच्चे मौज मस्ती करते हैं, शायद वो छिन रहा हो? छिन रहा हो ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मेरे साथ कभी भी ऐसा? क्योंकि आप ये मान लीजिए जब बच्चे को थोड़ी सी अच्छी अटेंशन मिलती है ना तो बच्चे को बड़ा मज़ा आता है। सो व्हेन आई वाज 8 और 9 तो उस टाइम पे दोस्त नहीं थे मेरे इतने, और मैं देखती थी कि हाँ ये बच्चे शाम को जाकर खेल भी रहे हैं और ये सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। मेरा कभी भी इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल्स पे आती थी, या फिर ये अपना अगर मैं काम भी कर रही होती तो सबके आगे बोलना मुझे बड़ा पसंद था। वो लीडर वाली जो चीज़ होती है ना कि लीडर डज नॉट हैव फ्रेंड्स, तो मुझे बस वो आगे रहना पसंद था, मुझे उस काम में मज़ा आता था। तो वही चीज़ है, आपके जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, अगर आपको उस चीज़ में आप करते जाओ तो आपको दूसरे लोगों से इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। एज़ फॉर प्रेशर मैंने कभी माना नहीं। और रही बात मम्मी की, मैं कभी भी रिश्तेदारों में, मेरे फादर मुझे कभी लेकर ही नहीं गए इतना, ना रिश्तेदारों में ना कभी वैसे। तो कभी कभार मैं ऐसे में मुझे भी जाना है, मम्मी चली गई है मेरी। उस टाइम पर फिर मेरे पापा मुझे समझाते थे काफ़ी देर तक, अभी ये भी तो है, फिर ये भी तो है। फिर हम कुछ इंटरेस्टिंग सी बातें करते थे, फिर वो कोई इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, कभी अकबर के बारे में कोई टॉपिक उठा लिया, कभी समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त के बारे में, तो फिर कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करते करते तो मेरा उस चीज़ पे से दिमाग हट जाता था, फिर मैं अपने ट्रैक पे वापस। तो बहुत अच्छी बात भी है कि आपको कहते हैं घर में ही गंगा बहती है तो बाहर झांकने की ज़रूरत है। जानवी का मतलब भी गंगा होता है। जी चलो, पर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा रही और आपके हौसले, आपकी रुचि बहुत अच्छी चीज़ों में रही, ये भी जानकर अच्छा लगा। कुछ 2 लाइनें आपके लिए कहती हूँ। नन्हे कदम पर सपनों का आसमान बड़ा, छोटी सी उम्र पर हौसला खड़ा, आँखों में चमक जैसे सूरज की किरण, हर सोच में छुपा कुछ नया सृजन, कागज़ पर लकीरें पर कहानी गहरी, पीछे जो स्ट्रगल आपके पापा का रहा, मासूम सा चेहरा पर समझ है ठहरी, बहुत सदी हुई,
जहाँ बड़े सोचते वहाँ ये कर जाते। मतलब अभी बड़े तो सोच रहे हैं चलो पीएचडी करें, मन बनाएं कि नहीं बनाएं। आप देखो सबसे कम उम्र में पीएचडी स्कॉलर हो गए, तो छोटे हाथों से बड़े काम कर जाते, समय से पहले ही पहचान बना लेते। इसीलिए आप आज यहाँ डेली पोस्ट में भी हैं अपने हुनर से दुनिया सजा जाते। ना डर, ना रुकावट, ना कोई दीवार, बस जुनून ही बनता है इनका हथियार। कम उम्र कोई सीमा नहीं होती, प्रतिभा कभी उम्र से नहीं होती। जो दिल से जिए वही आगे बढ़े, छोटे सितारे ही एक दिन सूरज बनकर चले। थैंक यू सो मच, इट वाज वेरी लवली, थैंक यू सो मच। बहुत आप बढ़िया बहुत बढ़िया बोलती हैं हिंदी में, एब्सोल्युटली लव इट। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। एग्जैक्टली। अच्छा, ਤੁਸੀਂ कुछ सुनाना चाहोगे क्योंकि हरियाणवी गाना ਹੁਣ याद आया कोई कि नहीं आया? हाँ, एक गाना है, बड़ा फेमस गाना है, वो फेमस नहीं कह सकते अभी उसे, पर वो बहुत ही एक इंस्पायरिंग गाना है। वो एक मूवी का गाना है और उसमें एक बेसिकली एक बेबी गर्ल जो है, शी इज स्टिल इन अ वूम, वो अपनी मदर को बोल रही है कि प्लीज़ डोंट लेट हिम किल मी, क्योंकि आई स्टिल वांट टू कम आउट एंड आई वांट जस्ट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। तो फिर वो कह रही है, मात मने मरवाइए ना, मात मने मरवाइए ना, थारी शान देखना चाहूँ सू, गर्भ त बाहर लिकड़ क हिंदुस्तान देखना चाहूँ सू। या दैट्स इट। वेरी नाइस। मतलब हरियाणवी बहुत अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ लैंग्वेज बोली जाती है। हाँ जी, मेरा सवाल सर अब आपसे है, आपने कभी मतलब पहले सोचा था अपनी जवानी के समय में, जब आपकी शादी हुई थी नई नई, कि मेरी बेटी होगी या फिर बेटा होगा तो मैं उसे उस तरीके से तैयार करूँगा? क्योंकि ये सारा अगर आज ही कुछ सीख पाई है, हर बात पे ही आप ही का जिक्र कर रही है कि मेरे फादर, एक तरह से मिरर ही आप। तो आपने कुछ ऐसा पहले सोचा हो कि मैं अपनी बेटी होगी, गुड़िया होगी या फिर बेटा होगा तो मैं इस तरीके से उसे पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा, तैयार करूँगा, ये पहले से ही प्लानिंग थी? क्या सोचा था ये बताइए। वो अभी ये था, मैं बताता हूँ। मेरे घर के साइड में, ये जो दिमाग में आया, मेरे घर के साइड में एक फैमिली रहती है गांव में जहाँ मैं रहता था, और उसके 8 बच्चे हैं। मैं तो जब मैं उनके बच्चों को देखता तो बच्चे बड़े परेशान, मम्मी पापा मजदूरी करते, बच्चे इतने, कोई बच्चा स्कूल में जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, खाना मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब मैं उनको देखता, मैं कहा ऐसे बच्चे पैदा करने का फ़ायदा क्या? जब एक पेरेंट्स अपनी उस जिम्मेदारी को समझ ही नहीं पाते और उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाते। एक एज तक तो पशु भी करते हैं ना अपने बच्चों के लिए, एक एज तक तो बच्चे वो भी करते हैं, और ये एक इंसान होकर अपने बच्चों के लिए उस तरीके से नहीं कर रहे। कर लो, उठ रहे हैं, सो रहे हैं, जब कोई कहीं घूम रहा है, पैर में चप्पल है या नहीं है, तो ये चीज़ें बड़ी दुख देती थी। तो दिमाग में ये था कि बच्चे, जितना मेरा सामर्थ्य है, बच्चा एक ही रहेगा, एक ही बच्चा करना है, कुछ भी करना है, लेकिन उसको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है। तो बस वो दिमाग में था। तब ये हुई पैदा, तो बचपन से ही मैंने उसके साथ काम करना शुरू कर दिया था। जैसे लैब में खिलाता था मैं, तो प्लेइंग कराता था, तो मैं उसी तरीके से बोलता था, ओ यू आर लाफिंग, ओ यू आर स्माइलिंग, ओ। तो मेरा जो था, क्योंकि मैं पहले सबकॉन्शियस ब्रेन पे ज़्यादा काम करता हूँ, वो चीज़ें मैंने ट्रेनिंग ली थी, तो मुझे पता था कि ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने जब देखा होगा कोई भी चीज़ें है ना, जब हम भाषा सीखते हैं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, भाषा पहले आया या विचार पहले आया? विचार। तो बिना भाषा के कोई विचार करके दिखाना। अच्छा, हाँ, राइट। पहले क्या आया? भाषा पहले आई। तो उसी तरीके से जब बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, 2 सेंस लेके बच्चा पैदा होता है। बच्चे के पास सिर्फ 2 सेंस होती हैं। एक पेन की सेंस होती है, आप उसे पेन दोगे तो रोएगा, और एक भूख की सेंस होती है। बाकी सारी चीज़ें आपको देनी होती है। विचार हो सकता है पहले, लेकिन वो व्यक्त नहीं कर पाएगा बिना भाषा नहीं होगा। हाँ, विचार कैसे हो जाएगा मैम? भाषा ही नहीं होगी तो विचार ही नहीं होगा। नहीं, बच्चा, एक छोटा बच्चा, उसे भाषा तो समझ ले, उसे दूध पीना या कुछ, तो हाँ, वो रोएगा, तो वो व्यक्त नहीं कर पाएगा। वो फील पेन, भाषा नहीं है उसके पास, पेन, उसके पास पेन, भूख लग रही है वो रोएगा, पेन, लेकिन भाषा नहीं है उसके पास। भाषा तो दी जाती है जब बच्चा 2.5-3 महीने का होता है, तो उसके पेरेंट्स उसको भाषा देते हैं। तो इसी तरीके से मैंने वो भाषा देनी शुरू कर दी थी, तो वहीं से काम करना शुरू कर दिया, तो वो चीज़ें होती चली गई। लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये फेमस होगी, ये नहीं सोचा था कि 2 क्लास 1 साल में करेगी, ये नहीं सोचा था कि ये इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाएगी, ये नहीं सोचा था कि ये एक ऐसे चैनल पर जाएगी या न्यूज़पेपर में नाम आएगा, ये नहीं सोचा था कि ये मेरा नाम ऐसा रोशन करेगी, ये कुछ भी नहीं सोचा था। ये ऑटोमेटिकली हो। फिर तुसी खुश होया करो। तो बस ये सोचा था कि काम अच्छा करना है अपने बच्चे के साथ, अपने बच्चे को एक अच्छी परवरिश करनी है, सिर्फ इतना सोचा था। कहते मैं मेरे तो बस एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बस वो सोची थी। अच्छा, जानवी कहते ने, जिमें क्योंकि नेहा भी गल कर रहे हैं कि विचार,
ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸੋਚਦੇ ਆ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ इसी चीज़ में मैंने सबसे पहले काम किया था कि मुझे ट्रांसलेट नहीं करना है, और इसी चीज़ को मेरे को पापा ने भी सिखाया था कि अगर पंखा है तो वो पंखा ही नहीं, पंखा ही है। पंखा मतलब फ़ैन नहीं, फ़ैन मतलब पंखा नहीं, ऐसे नहीं सीखना कभी भी। फ़ैन इज़ फ़ैन, पंखा इज़ पंखा। तो इसलिए जब मैंने बताया भी था कि आप इंग्लिश को कैसे अपनी बेटर कर सकते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट के थ्रू ज़्यादा सीखो। जब आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू सीखते हैं किसी लैंग्वेज को, तो आप ट्रांसलेट नहीं करते हो उस टाइम पे, फिर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते हो। तो मैंने कभी ट्रांसलेट नहीं करा, और उसी पे मेरा, जब मैं स्टूडेंट्स को बताती भी हूँ, तो मेरा ये पहला फोकस होता है कि इन द बैक ऑफ योर माइंड स्टॉप ट्रांसलेटिंग। फोर्स करो, चाहे खुद को फोर्स भी करना पड़े, पर छोटे छोटे थॉट्स को इंग्लिश में लेकर आओ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਤੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ कि हाँ ये ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ करना बोंजोर Bonjour। सबसे पहले तो आपको भी कुछ वर्ड्स का बहुत शौक है, मुझे भी कुछ लंबे लंबे वर्ड्स याद करने का बहुत शौक है, जैसे न्यूमोनियो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवोल्केनिक फोनाइसिस नाइस सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्सपियालिडोशियस। आज मैं कुछ नया आपसे सीखने चाहता हूँ। Okay. कोई ऐसा वर्ड जो मतलब मुझे भी ना पता हो और मतलब किसी और को भी नतेश ना तुम पता हो। इतने टैलेंटेड हो कोई ऐसा वर्ड। मैं सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा सीखता हूँ इन सब चीज़ों को, मुझे इंटरेस्ट रहता है, तो मैं पहले रील सेव करता हूँ, फिर उनको तोड़ तोड़ के उनको याद करने की कोशिश करता वेरी हूँ। नाइस, दैट्स वेरी नाइस। एक मेरा बहुत ही फेवरेट वर्ड रहा है, उस वर्ड को हम बोलते हैं रॉन्डेवू, अगर आपने कभी सुना हो तो। सो रॉन्डेवू, यस। तो उसकी जो स्पेलिंग है, इट इज़ RENDEZ, जी मतलब ZVOUS। तो इट्स नॉट रॉन्डेज वूज जैसे लॉट ऑफ पीपल प्रोनाउंस। वो फ्रेंच ओरिजिनेटेड वर्ड है, पर हम उसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी यूज़ करते हैं। सो रॉन्डेवू का मतलब होता है अ प्राइवेट एंड स्मॉल मीटिंग विद समवन। सो दैट्स रॉन्डेवू। तो ये मैंने कहाँ से सीखा था, मैं वन डायरेक्शन की बहुत बड़ी फ़ैन थी एक टाइम पे, तो उनके गाने बड़े सुने मैंने। तो वो उसमें उनका एक गाना था, और उस गाने में बोलते हैं इफ़ यू लाइक हैविंग सीक्रेट लिटिल रॉन्डेवू। तो वहाँ से मैंने ये वर्ड सीखा, सो इट्स रॉन्डेवू। और उसके बाद से ये मेरा ऐसा वर्ड बना कि वो होता नहीं है, एक आपने नया नया वर्ड सीखा होता है, हर कॉन्वर्जेशन में उस वर्ड को लगाना ही लगाना है। सो इट्स दैट्स काइंड ऑफ वर्ड। तो ये दिस इज़ द वर्ड रॉन्डेवू। Try pronouncing it. Rendezvous. Rendezvous, nice. I hope मेरा एक्सेंट ठीक रहा होगा। Definitely, yes. दूसरा सवाल ये भी है कि स्कूल कॉलेजेस में क्या होता है कि जब कोई असाइनमेंट ज़्यादा होगी हो तो ऑब्वियस है कि जानवी को ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ का, चलो उससे करवा देते, बदले में उसको चॉकलेट दे देंगे या उससे कोई काम करवा लेंगे या उसकी हेल्प कर देंगे। तो आपके साथ कोई ऐसा सिनेरियो या कोई मैं इंसिडेंट? एक्चुअली दूसरों से अपनी असाइनमेंट्स लिखवाती थी और मैं उन्हें चॉकलेट देती थी। मुझे शौक नहीं, मुझे अपने खुद के नोट्स बनाने का बड़ा शौक होता है, पर वैसे ही कि हाँ आप कॉपी पे ऐसे इसको फिर पूरा रफ पे लगाओ, फिर उसको फेयर कॉपी में आप उसको फिर कॉपी करो, वो मेरे बस की नहीं होता था। और इसी वजह से मुझे एक बारी बड़ी डांट भी पड़ी थी। पूरी 7th क्लास और 8th क्लास मैंने नोटबुक्स नहीं बनाई थी। और एक दिन पापा को पता लग गया, और मैं क्लास में यही चीज़ है कि मैम आज मेरी कॉपी घर पे रह गई। किसी दिन मैंने किसी स्टूडेंट की चेक करवा दी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑलरेडी मेरी रफ नोटबुक में सब कुछ है, मुझे फेयर में क्यों लिखने की ज़रूरत है इसे। तो मैंने 2 साल निकाले, और एक दिन माई फादर वाज लाइक जानवी एक बारी कॉपियाँ दिखाई, और बड़े दिन हो गए तेरी कॉपीज़ देखे हुए। अब क्योंकि मार्क्स मेरे अच्छे आते थे, तो किसी को डाउट ही नहीं होता था इसने कभी नोटबुक्स बनाई ही नहीं है। तो फिर मुझे बड़ी डांट पड़ी, क्योंकि वो वाला शौक था नहीं मुझे। बट व्हेन आई वेंट टू कॉलेज, तो वहाँ पर असाइनमेंट्स होते थे, बच्चे बड़े सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते थे। मुझे डिज़ाइन करने का कभी ना शौक हुआ ना कभी करना आया, तो मुझे ऐसे स्ट्रेट लाइन स्केल से वो भी नहीं आती थी मुझे करनी। तो उस टाइम में बच्चे हुए थे, यू डू इट प्लीज़। तो आई वॉज दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट। काफ़ी लोगों को ये होता था बस आइडिया बता दे, तो वो मेरे पास आते थे कि ये बता दे लिखना क्या है। मैं लिखूंगी नहीं, मैं बोलूँगी, तुम लिखते रहो अपना। सो आई यूज्ड टू स्पीक एंड दे यूज्ड टू राइट। कोई एक्स्ट्रा आर्ट जो आपको लगता हो कि मुझे ये भी अच्छा लगता है, मुझे इसमें भी अपनी फील्ड में मतलब इस फील्ड में भी होना चाहिए था, अच्छा करना चाहिए था? मुझे लिखने का बड़ा शौक है, मतलब वो हैंड राइटिंग वाला लिखना नहीं, पर कोई थॉट आ जाता है मेरे दिमाग में, मुझे उस थॉट को एग्जैजरेट करके उसके बिल्कुल डेप्थ में जाकर उसके ऊपर लिखने का बड़ा शौक है। जैसे एक अभी थोड़े दिनों पहले आया था मेरे दिमाग में कि हर किसी इंसान के नेचर अलग अलग होते हैं, और तो ये भगवान ने नेचर दे के भेजे, इंसान का नेचर बनाया। एंड वाई इज़ इट सो डिफिकल्ट टू गेट थ्रू समबडीज नेचर एंड देन टू गेट इन टच विद एन इंडिविजुअल, या फिर ये हर किसी के लिए, if you have a partner, if that is your boss, अगर कोई आपका कलीग है, तो फिर उससे रिलेटेड मैंने ऐसे 2 पेजेस लिखे। तो मुझे लिखने का बड़ा शौक है। नहीं तो क्योंकि ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ कि ਇਹਦੀ नेचर बहुत डिफरेंट है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ पोइट्री फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया है? मैंने इसको थोड़ा सा ऐसे लिखा है कि इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, जो कन्फ्लिक्शन होता है ना कि हाँ मतलब हम ये कितनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है ये। मैंने इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया इसमें, बस वो फीलिंग जो है उस फीलिंग को मैंने डिस्क्राइब करा था। और जानवी बहुत कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਔਰ ਦਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ और मेन किन्ना चीज़ां ते काम करने की ज़रूरत है? मैं सारे accents में बोल देती हूँ. Okay, so starting with the British accent first. Actually, when I started from there, right, so I started speaking in a British accent. If you really want to become fluent in British, then make sure you're following your R's and T's perfectly. And now if we talk about American, now American is one of my favorite accents ever. Why? Because it's very chill. Whenever I'm speaking an American accent, it just rolls over the tongue. So over there too, you have to focus on your diphthongs and your R's and your T's, especially your R's. If you can get the R correct in American accent, there you go, 40% problem solved. Now if we talk about Australian, you know what, mate, like you learn words, right, but they just don't come out naturally, right? So that's different, and many people think like, oh, Australian and American, they are very same. Well, you can't say they're similar at times, but there are a lot of differences, mate. And if we talk about Scottish, now again, I would definitely say like this is still one of the best pronunciations that I've ever come so far, and a lot of people think like, oh, it's too difficult, but for me it's very, very interesting, you know. And we talk about Cockney. So when I started first learning the Cockney accent, right, so I was just thinking like, oh, pretty interesting. All you have to do is like drop words and don't speak your H. So if you're trying to learn the Cockney accent, so drop your H, like hello, or like A, and there's no H, and when you're pronouncing like oh, you, for example, the word as, so it is H-O-U-S-C, so you just say as, and there is no O-U sound, there is no H sound, so that is your Cockney. And as for posh, yeah, so posh is, as the name suggests, it's one of the poshest accents, right? Whenever I'm speaking in posh, makes me feel very sophisticated, and I feel like, oh, I am in the royal family right now, although I'm not, but that's the kind of accent posh is. And if we talk about Spanish, hola, ¿cómo estás? Yo soy Janvi, muchas gracias. And if we talk about Japanese, I already spoke in Japanese, arigato gozaimasu, minasan. And French, merci beaucoup pour votre temps et votre attention. हरियाणवी मैंने गाना तो गा दिया था, हरियाणवी में पूरी बोल का भी सुना दी था से. नहीं, सारी लैंग्वेजेस तो थोड़ी बड़ी अच्छी कमांड है. दैट इज़ द रीज़न यू आर टीचर और तुसी एडी छोटी एज ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਮਾਸਟਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, PhD ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਾਨਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਵਰਡਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है. Thank you so much. Thank you so much. How was your experience? Amazing. I absolutely loved it. ये concept मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हर कोई आ रहा है, अपने अपने questions पूछ रहा है, तो ये काफ़ी interesting concept था, काफ़ी नया था. मुझे बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, सारी चीज़ों के बारे में बात करके. And I would love to be here again. So thank you so much for having me. ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪਵਾਰ ਸਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਪਵਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ. मैंने जिस तरीके से इंटरव्यू शुरुआत करी थी, मैं इंटरव्यू को खत्म भी कर सकती हूँ. Yes, why not, please. Ladies and gentlemen, this is Daily Post News and I am Janvi. Thank you so much for watching this. I absolutely love the concept here. Keep watching Daily Post News and from today onwards, even I will start watching it. See you there. Thank you so much. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਐਂਕਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ.